It's been kind of a bumpy ride अभी तक तो. Like the pleasure you get when you hand over, जब आप end में you're handing over the site and it's all done, and the reaction you see, physical labor this profession requires you to have. Then only you should enter this profession. Otherwise, I'll just say okay, there are much easier things to do, much better desk jobs to get. He just planted that idea in my head and I couldn't get it out. तो जिद पकड़ ली थी कि अब तो यही करना है, तो अब तो पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. You've done a horrible job. They don't know how to score you. उस साल वास्तुकला के प्रोफेसर्स डिसाइड टू गो ऑन प्रोटेस्ट. अगर आपने खराब बनाया है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप पूरी रात जग के बनाओ. They don't like it, they'll just tear it up and you have to redo it. Treat interns like shit and nothing else. मेरी TL was the worst person, to be honest. And I've kind of the 50-50 of both of them. So took architecture and yeah, it's been very interesting 8-9 years. नोटबंदी हुई. नोटबंदी काइंड ऑफ टुक द इंडस्ट्री बैक 2 years. माय जर्नी जब हम कॉलेज में थे ना, हमें ऐसे सिखाया था देखो ग्लोरीफाइड के यू नो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, यू गेट टू डिजाइन दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स एंड यू नो दिस मैसिव स्पेसेस एंड ऑल ऑफ दिस. एंड जब आप कॉलेज से निकलते हो, द फर्स्ट ड्राइंग यू गेट टू डू इज अ वॉशरूम डिटेल ड्राइंग. व्हाई आई टेक मनी टू डू दिस 2-line drawing, you know, and all of that, because clients are still like that. But the problem with that is it's not going to be your floor plan, it's going to be somebody else's floor plan. Now you as a customer, you want to visualize something which is done in your space. नमस्कार दोस्त, आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही टैलेंटेड और यंग आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर शुभांगी त्रिपाठी. शुभांगी जो दिल्ली में बेस्ड हैं, अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव डिज़ाइन सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं. उन्होंने अपने पर्सनल करियर को एक फ्रेश और मॉडर्न अप्रोच के साथ शेप किया है और उनकी कहानी बहुत सारे यंग एस्पायरेंट्स के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है. हम उनसे जानेंगे उनका क्रिएटिव जर्नी कैसा रहा अभी तक, चैलेंजेस और कुछ टिप्स जो वो नए डिजाइनर्स के लिए शेयर करना चाहती हैं. चलिए मिलते हैं शुभांगी त्रिपाठी से. वेलकम शुभांगी. Thank you, Ashutosh. Thank you so much. So, yeah, so I started my journey in 2016. It's been 9 years of this, 8.5, 9 years of this. And in between, we've had demonetization, we've had COVID, we've had all sorts of ups and downs that can happen in our industry. So it's been kind of a bumpy ride अभी तक तो. एंड बट और किसी चीज के लिए आई, मतलब मेरे को कभी वो ही नहीं था, पैशन ही नहीं था. दिस इज द ओनली थिंग दैट एवर आई ऑलवेज वांटेड टू डू, जस्ट डिजाइन स्पेसेस एंड make those kind of ideas or dreams people have for their spaces or their homes or their you know, offices or anything else come to life. And it's like the pleasure you get when you hand over, जब आप end में you're handing over the site and it's all done, and the reaction you see with people, I think that is very very satisfying after months and months of all this rigorous planning and work and tireless nights and everything. So I'll to just say that anybody who understands how much physical labor this profession requires you to have, and the amount of time and energy you need to spend on it, like tirelessly. मतलब आपको पता भी नहीं है कि कभी कोई प्रोजेक्ट 3 महीने का प्रोजेक्ट 9 महीने खिंच जाता है, and you have to keep up with it. Those things are also part and parcel of the job. तो आपको करना ही पड़ेगा. तो unless you're 110% sure that this is something that you want to take up for like 30-40 years of your life, then only you should enter this profession. Otherwise, I'll just say okay, there are much easier things to do, much better desk jobs to get than to have like these site visits and you know all that hoopla. So yeah, but it's just one of those things. I think if you're really really happy and really really passionate about the work, I think it's a very satisfying profession to have, to be honest. But it's a very long journey, still a very long journey. Hanji. So Shubhangi, I think that everyone would be interested to know Yeah. कि was this like your childhood dream to get into architecture? या कैसे how did you get नहीं, into this it's profession? very story. So you know, when हम लोग जब स्कूल में होते थे उस टाइम पे, you know, दो ही प्रोफेशन को बहुत ज्यादा वो मिला हुआ था इम्पोर्टेंस थी. Either you're an engineer or you're a doctor. There's nothing in between. And I was like, okay, so doctor, medical. So I was like, it was too much study, and I knew I couldn't do that. So I was like, this I'm gonna part ways from. And I was like, okay, so I'll do engineering like everybody else around me. And
started studying for it. IIT की preparation कर रही थी like everybody else, gave my exam like everybody else. And but उस time पे भी my inclination was towards civil engineering at that point of time also. But after I gave all my exams, AI triple E दे दिया था, सब दे दिया था मैंने. And one day my dad comes home, is met with his college friend, and उनकी daughter करी थी. So one day he comes home and he's like कि मैं उनकी बेटी से मिला और उनके पूरे घर में models रखे हुए थे. She was working on sheets and she was sketching stuff and doing this. And he just planted that idea in my head, and I couldn't get it out at all. So I was like, okay, and that sounded so interesting to me. So I was like, you know what? Let me just study what architecture is. And I started googling about it. मैंने कहा, अच्छा, there's a whole new world out there which does not involve engineering and medical, and it's still like something that I am very very drawn to. So because I was very good at sketching, I was very good at drawing and creative stuff, but because मेरे पास ऑप्शन में ही ये दो प्रोफेशन थे मेरे सामने, तो मुझे लगा कि फिर देन इंजीनियरिंग वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू गो फॉर. एंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दैट आई वाज लाइक, ओ अब तो यही करना है. तो नाउ दिस इज वी आर इन मे, एंड जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, एंड जून में नाटा का पेपर होता है, विच इज आर्किटेक्चर का ईयरली वन पेपर होता है जो आपको क्लियर करना होता है. अब नाउ 1 month टू प्रिपेयर फॉर अ पेपर पीपल डू फॉर अ ईयर. एक ही महीने में मुझे प्रिपरेशन भी करनी है, एक ही महीने में मुझे सब कुछ क्रैक भी करना है, एक ही महीने में आई हैव टू स्कोर गुड इनफ टू गेट इनटू अ कॉलेज आल्सो, बिकॉज इट्स अ 5 year कोर्स. तो मैं एक साल स्किप भी नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम ही नहीं है. तो ठीक है भाई, फिर तो अब तो जिद पकड़ ली थी कि अब तो यही करना है, तो अब तो पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. Started doing all mock papers, started studying, went all ballistic for 30 days, gave my NATA exam. And उसमें भी ना दो टाइप का पेपर होता है. You have the theory paper, you have the drawing paper. Okay. So theory paper का रिजल्ट तो तुरंत तुरंत मिल जाता है. आपने क्लिक किया, मल्टीपल चॉइस होता है, एंड आपको फटाफट उसी टाइम पे पता चल जाता है कि आपको कितने आए हैं, 100 में से कितने नंबर आए. तो मैं लाइक, चलो ठीक है, इसका तो ठीक हो गया. ड्रॉइंग पेपर इज समथिंग दे टेक अवे, एंड वो चेकिंग में टाइम लगता है एंड ऑल, तो उसमें फिर एंटिसिपेशन फिर बढ़ता चल जाता है, एजिटेशन. अब मेरे साथ जिन्होंने भी पेपर दिए सबके स्कोर आ गए और मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है. एंड माई डैड इज लाइक, ईदर यू डन अ वेरी गुड जॉब और यू डन अ हॉरिबल जॉब, दे डोंट नो हाउ टू स्कोर यू. एंड आई एम लाइक जस्ट डेड शिट स्कैर्ड एज टू भाई अब क्या आने वाला है, मैं पास होंगी नहीं पास होंगी एंड ऑल ऑफ दैट. थैंकफुली by some grace, I got scored very very well in the drawing paper and cleared up. उस टाइम पे मतलब जब मैंने दिया था, this is 2012, okay, so long back. And उसमें फिर उस टाइम पे 120 का स्कोर भी बहुत ज्यादा स्कोर होता था, तो मेरा समवेयर अराउंड 118 120 आया था. मैंने कहा बस इंजीनियरिंग से हाथ वाथ धो लिए मैंने, अब मैं नहीं जाऊंगी, आईपी नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है. एंड उस टाइम देयर वर 3 colleges in Delhi, Sharda, नहीं 4, Sharda, Amity, SPA and Vastukala. And Vastukala was the best one at that point of time. So I wanted to go for Vastukala. मैंने अप्लाई कर दिया, सब कर दिया है. उस साल वास्तुकला के प्रोफेसर्स डिसाइड टू गो ऑन प्रोटेस्ट, क्योंकि फॉर सम रीजन दे वांटेड टू गो फॉर प्रोटेस्ट. मैंने कहा चले गए भाई, अब हम वेट कर रहे हैं, लिस्ट निकलेगी, नहीं निकली है. जून हो गया है, जून एंड हो गया, जुलाई फर्स्ट वीक आ गया है, देयर इज नो लिस्ट ओनली. हम लाइक यार माय ईयर इज गोना गेट वेस्टेड. एंड तब तक एसपीए की लिस्ट भी निकल चुकी है, तो अब एसपीए में भी अप्लाई नहीं कर सकती मैं. सो देन देयर इज लेफ्ट विद शारदा एंड एमिटी. एंड देन आई वेंट टू बोथ द कॉलेजेस, हैड माय एग्जाम, हैड माय इंटरव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट. एंड देन आई वाज लाइक ठीक है भाई, हम भी वहीं, द वर्ल्ड इज देयर, आई वाज आल्सो देयर, सेम प्लेस. तो वहां पे we just started this, and nobody tells you how long of a course and how tiring this course is. I had 10 to 12 subjects every semester. उसमें से 3 drawing के subjects हैं, and teachers are ruthless. They tear your sheet in front of your face only. अगर आपने खराब बनाया है तो आपकी प्रॉब्लम है, आप पूरी रात जग के बनाओ. They don't like it, they'll just tear it up and you have to redo it all over again. And वो 2 subjects में आप फेल भी नहीं हो सकते. वो 2 subjects फेल हुए तो आपको रिपीट करना पड़ेगा. So man, after 5 years of जद्दोजहद and tireless nights and sleepless nights and everything, you pass out of college. And because architecture में they don't think there is a concept of placement, so there is no placement. So after 5 years of doing all of this, you're like, pack up your things and go. अब you would find your job खुद से. And by the time I got passed out, नोटबंदी happened. अब नोटबंदी हो गई है, तो everybody is saying in the market कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम आपको कैसे हायर कर ले. And I'm like, यार honestly बहुत मुश्किल से got my internship. Horrible corporate setup by the way, or they treat interns like shit and nothing else. मतलब इतनी मेरी TL was the worst person in the world, to be honest.
worst I'm telling, and this is my first job ever. तो मैं तो भाई थक हार के, मतलब मैं तो छुट्टी ले लेती, मैं पूरे महीने जाती भी नहीं थी, मैं छुट्टी ले लेती। I was like, पॉइंट ही नहीं है, वो मेरे को इतने से पैसे दे रहे हैं, उसमें भी इतनी एक दिन आधा घंटा मैं लेट चली गई, मेरे आधे दिन के पैसे काट लिए थे। मैंने कहा फिर क्या ही फायदा है, ठीक है तो छुट्टी ले लेते हैं। तो कभी भी, आई स्वेयर, इन माई I think 6 or 8 months of internship, I never took a full month pay. Never. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. But a lot of things I got to learn from that space. मतलब drawings के बारे में, buildings के बारे में. There's so much fascination to it. And I think because partly, I think the reason is my dad is a civil engineer. So I think probably it's something that he kind of passed on to me somewhere, that I was also drawn to the same kind of structures and everything. So his technicality and my mom's very creative side kind of brainchild this here, and I've kind of the 50-50 of both of them, so took architecture. And yeah, it's been very interesting 8-9 years. नोटबंदी हुई, नोटबंदी kind of took the industry back 2 years. We could रिकवर करना शुरू किया हमने 2018 से। 2020 कोविड हैपेंड, एवरीथिंग गॉट शट डाउन, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, इंटरव्यू बंद हो गया है, कुछ भी नहीं करना, सबको घर में बैठना है। लाइक ग्रेट, परफेक्ट। एंड then 2 years that happened and we have been recovering from that ever since, चल ही रहा है। तो my journey, जब हम कॉलेज में थे ना, हमें ऐसा सिखाया था, so they were glorified कि oh you know it's such a beautiful profession, you get to design these beautiful structures and you know these massive spaces and all of this. And जब आप कॉलेज से निकलते हो, the first drawing you get to do is a washroom detail drawing. That's all you get to do as an intern. Okay, so after showing you all this world and all these dreams and every aspiration सब करा के वो आपको ये पकड़ा देते हैं। For 8 months, this is the drawing I did in that office. 8 months of just washroom designs and detailing and stuff like that. So it's not, I just want to tell everybody, it's not as glorified in the real world as they show in colleges. It's not, believe me. It's not as easy also. Interns are not treated like they can design anything. You don't have a voice, you don't have anything. You're just there to kind of, in a way, you know, make somebody else's vision come to life. And it will take you years to kind of get to the space wherein you can say, okay, this is what you want to decide. So it's not, it doesn't come like that easy. So problem ये है कि designers को, anybody who is a designer, who is a creative person, you have this alter ego. आपका थोड़ा सा आप थोड़े से वो होते हो कि नहीं ये मेरी चीज है, you know, very possessive about those things. And when you get to these kind of spaces, you need to understand that that is all just in theory. In reality, things do not work like that. So you have to kind of be very, very passive about those things and, you know, let go or shed all of that and then start from scratch all over again. So it's a lot of misconception. Also, अब तो people do know about architecture, but मेरे टाइम पे जब मैंने किसी को बताया था मैं आर्किटेक्चर में, तो they used to say, oh आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं आप। मैंने कहा आर्ट्स की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आर्किटेक्चर की स्टूडेंट। या अच्छा सिविल इंजीनियर है आप। मैं कहा मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। एंड to this day, sometimes I have to justify why I charge fees, why I take money to do this 2-line drawing, you know, and all of that, because clients are still like that everywhere. So it's very frustrating. You have to, in a way, keep conveying your value, what you are bringing to the table every single time. You know, जैसे डॉक्टर की डिग्री के साथ ना, वो बैज के साथ, उनके वो डीआर के साथ ना, वो रिस्पेक्ट साथ में आती है। हमारे साथ में नहीं आती है। हमारे वो ईआर के प्रीफिक्स के साथ वो साथ में नहीं आता। हमें हर बार जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम क्यों चार्ज करें, हमारी जरूरत क्यों है इस प्रोजेक्ट। सो बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दे कैन जस्ट लुक एट Pinterest, दे कैन लुक एट यूट्यूब, दे कैन लुक एट Instagram रील्स एंड डिजाइन देयर होम। तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, you know. So it's a very ruthless profession. It's a very tiring profession, which is why people leave it in the middle of. So 5 साल का So, कोर्स Shubhangi, do you Hmm. do you believe that once as a professional, once you have been able to create your let's say your portfolio, once you have your portfolio in place, does that help? Does that ease out things with I think, customers? see, even with the portfolio, everybody would just say, I'll give you an example. Let's suppose you and I are having a discussion about your home renovation. Okay. So you'll come up to me, you'll say, okay, you want to get your home renovated. I'll show you 20-30 projects that I've done in the past. But the problem with that is, it's not going to be your floor plan. It's going to be somebody else's floor plan. Now, you as a customer, you want to visualize something which is done in your space.
So now, and you guys, because of the, I'll say कि you guys do not have that level of creativity. You can't really visualize it that easily as we can probably. So then you want to have something very, very specifically catered to you, which cannot happen unless somebody is actually doing that detailed drawing of your house. So it's a kind of a juxtaposition वाला situation हो जाता है कि मैं आपको 10 तरह की चीजें दिखा सकती हूँ जो सिमिलर है आपके स्पेस से। मैं आपको इंस्पिरेशंस भी दे सकती हूँ कि आपके घर में क्या किया जा सकता है, बट जब तक मैं आपके घर पे काम नहीं करूंगी तब तक वो एग्जैक्टली विल नॉट कम टू लाइफ। नाउ एज अ कस्टमर यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आई कैन गिव यू आइडियाज एंड आई कैन शो यू द काइंड ऑफ वर्क आई हैव डन इन द पास्ट, एंड दैट यू हैव टू टेक इनटू एन इंटरप्रिटेशन as to whether that works for you or not, because exactly आपके ही स्पेस का, आपके ही साइज का, आपके ही डायमेंशंस की चीजें मेरे लिए लाना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। So as a customer, you also need to know what you are looking for when you want to hire a person to do these kind of services. अगर आप बहुत स्पेसिफिक चीज चाहते हो, then you have to kind of have a monetary value. There is a monetary value attached to it also, because मुझे उस चीज को विजुअलाइज करने में, उस चीज को स्केच आउट करने में, उस चीज को डिटेल आउट करने में, मुझे उसमें it will take me hours or days or even weeks sometimes, depending upon how massive the space is. And अगर उस चीज को, उस टाइम को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, then there's no point in me putting in my efforts into that space. So portfolio helps only when the client is also coming from that same caliber कि okay ठीक है, I just want to see what kind of quality work you've done, but not really when they're just looking for it's a very wrong way of putting it out there, but a lot of people are just looking for that फ्री कंसल्टेशन, एंड वो चीज हमारे प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे पास कोई चीज लेकर आते हो और मैं फ्री में ही आपको सारी चीज उसका वो बता दूं कि ये चीजें करनी, तो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज माई ब्रेड एंड बटर ना एट द एंड ऑफ द डे। तो पोर्टफोलियोज इनिशियली अगर कोई आफ्टर कॉलेज निकल रहा है, पोर्टफोलियोज रियली रियली हेल्प इन लैंडिंग यू अ गुड जॉब, लैंडिंग यू अ गुड internship, but that has to be very, very specific also, because every year there is a new software coming in, every year there is something new coming in, some new materials coming in, you have to keep yourself updated every year. तो आपको पता होना चाहिए अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए रेट्स क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, you should have the skill set to kind of put it forward, because anything mediocre will not serve, वो परेशानी है, because of the accessibility इतनी ज्यादा हो गई है। Got it. And this brings a very interesting thing to my mind. So recently, now, I think a couple of months back, I saw a few websites, and these are basically AI websites which have been developed keeping focus in mind that Right. if you upload a random image, let's say of Hmm. your drawing room or your bedroom, Hmm. and then these AI websites, they are able to generate multiple ideas for you, Right. right? They're able to generate and produce multiple ideas for the same space that you have, the image that you have uploaded. Right. So since these kind of techniques have entered Hmm. the market, Hmm. do you think that these are actually helpful to conversate and negotiate with, on negotiate in terms of not the pricing, negotiate on the ideas, right, with your prospects? Is this helping you guys, or is this more like a threat It's to the current profession? How do you perceive it? so I've also navigated through some of these. The issue is Abhi right now, they've not mastered them for the images or the ideas to come out as perfectly as they should. So there's always some proportion off about it. There's something always off about it, which But if you're let's coming just from let's that. just say it's just matter of time. I mean, Hmm. because it's definitely going to enhance and improve in future. Hmm. These AI models are being trained every day. Yeah. So 6 months down the line, the situation is definitely going to be Hmm. absolutely Hmm. improved and different. Hmm. So how do you perceive this? See, it's a good thing if you're just starting off. Maybe if you just want to ideate some things and just want to try some things out. But the problem with that is your prompt has to be so proper and so detailed out that it gives you exactly what you're looking. And that prompting also is a task then. Because sometimes a creative profession is not very
structured. Okay, जैसे मैं अगर कोई काम कर रही हूँ, so I'm designing a space, okay, and I'll get stuck के उस space पे क्या करना है. So I need to get back from it. Maybe I need to watch something. Maybe I need to take some space off. Maybe I need to look back on my some older projects. Need to look for an inspiration. Then need to come back to it. अब prompting वाले situation में क्या है कि you have to tell that AI exactly what you're looking for right now, with the right colors, with the right textures, with the right proportion, with the right everything. But the problem with that is it's such a flowy kind of a process. You yourself don't know what you want, right? So then you can't feed that AI the right kind of information for it to produce the right kind of image or to produce the right kind of the end result. Now with that, what happens is that AI will come up with anything closest to what it feels that you want, but that may not be what exactly what you're looking for. So then you end up putting in more number of hours in that than it would take me for, let's suppose, to create a conceptual sketch. So for a person who has been doing this for a very close to a decade now, it is much easier for me to sketch it out and show कि मुझे क्या चाहिए, instead of using those AIs right now, because those AIs are not resolving that problem of me. They want me to completely tell them every little thing. अगर आप मैं एक वॉल डिजाइन कर रही हूँ आपके लिए, मुझे उस वॉल का साइज बताना है, मुझे उस वॉल का कलर बताना है, मुझे उस कलर का टेक्सचर बताना है, मुझे उसमें क्या चीजें मैं लगा रही हूँ वो बतानी है, उन सब चीजों की हाइट्स बतानी है, उनमें अगर कोई चीज हम पुटिंग अप आर्ट डिस्प्ले, आई हैव टू टेल विच आर्ट I want, which size of art I want, and I have to put up niche, if I put up any storage, so I have to define that kind of storage, I have to define that kind of detail in terms of fixtures and fittings also. इतनी सारी चीजें एक prompt में डालना और डालने के बाद भी उस AI को पूरी चीज रीड आउट करना, अभी at this moment I'll say it's not possible. So I have tried these multiple sites, but I don't think they are resolving what we want them to resolve, because those sites or those kind of platforms are not being designed with an architect. Those are being designed by people who come from very technical background. So उनको आपके लिए कि A plus B equals to C है, but हमारा profession does not work like that. It's not an equation that you can just fill it out in one उसमें. So you have to sit with a person who comes from a creative field to understand what we require that particular service, that particular platform to do. Maybe then that refinery would happen. Secondly, the AIs can only give you ideas from an older or I'd rather say from the things that have been happened have in the already been past. done. Yes, that newness cannot come from an AI. Would not be there. Yeah, idea, that inception cannot come from an AI. So even though people can try it out, I am not demeaning them to try it out. Please do. But I think, do you think it's gonna replace people like us? I don't think we're anywhere close to that. There is so True. much engineering, there is so much detailing that needs to happen with these sites for it to be even closer to how a creative person thinks. And they're not right now. They're very, True. very structured, very blocky, very Excel sheet like. And we work on canvas. They're two different planes altogether. So I think I'll just say to anybody who's developing something like this, please, if you have access to a creative person, please reach out to them. Have a discussion with them. What do they need from these platforms? Maybe then you will succeed much better. Because right now it's not really serving anybody anything. It's just generating random images of random things. I can show you the images I have generated from those AIs also. The proportions are all off. It's just blurry. It's some random things are happening in that image, and which I can tell. And anybody who's not even a creative person can tell there's something wrong with this. तो वो चीज तो आप क्लाइंट को सर्व भी नहीं कर सकते ना एज एन इंस्पिरेशन, Right. जब आपको भी पता है वो Right. ठीक नहीं है. क्लाइंट तो देखते ही बोल देगा कि अच्छा आप ये क्या लेकर आए हो एक हफ्ते के बाद भी आइडिएट करके भी. तो I think the AIs have a place for sure. I think AIs are more suited for works or for industries who are more data driven, because वहां पे it's really making their jobs quicker. जैसे there are things that I also use AI for research and all. I use it for you can revert back to mails, you can revert back to posts and replies and all those things. The nitty gritties you can do with it, which is great at, no denying. But this, which requires time and patience and all of those things, I don't think AIs are anywhere close. Probably, maybe they'll take another decade, probably, which I'm fine with it. I have no problem. My career is safe for another decade. We'll see after 10 years what happens with AI, but not yet, not yet. Got it. Yeah. So let's talk and dive into a couple of things that day to day जो आपको experience होता है with your prospects, right, with your clients.
So I think you can probably, give a few things that basically turn you down when you are Okay. in a conversation with a prospect. So Hmm. let's talk about, a few things that really turn you down when this comes from a client, especially in initial meetings, the very Okay. initial meetings. So what are those things? Okay. So initially, whenever I'll call up a client or we'll set up a meeting to discuss their space. The first thing which becomes a problem is that if they don't have a floor plan of the space, if they don't have the in layman terms नक्शा नहीं, अगर उनके पास ही नक्शा नहीं है और वो साइट यहाँ नहीं है so there is no access for me to have the space also. For me to imagine something, I still need to know the proportions of the space. वो चीज अगर नहीं है, it's a very big problem initially. But ठीक है, we try to sketch it out. We try to हम line drawings बना लेते हैं initially. पूछ लेते हैं कि लगभग आपके हिसाब से कितने बाय कितने का space होगा. And we try to turn it up as much as possible. Secondly, when we have a very and मेरा approach is very direct to clients. I like to keep things very simple and very direct. I'll ask them straightforward कि अच्छा ठीक है, आप ये space कराना चाहते हो, इस space में ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी. What is the budget that you've allocated? The biggest problem with our Indian society is that nobody wants to disclose budget. And I really do not understand why. अब आप मुझे बताओ, इंटीरियर्स में या डिजाइन में देयर इज नो अपर लिमिट. आई कैन डिजाइन द सेम स्पेस एंड लेट्स एक अगर मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक सेम कमरा मैं 5 लाख में भी डिजाइन कर सकती हूँ, वही सेम कमरा मैं 25 लाख में भी डिजाइन कर सकती हूँ. पर आपको बताना पड़ेगा ना कि आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है. अब मैं आपको कोई चीज बहुत महंगी सी सुंदर सी दिखा दूं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एंटीक है, बहुत यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड है, पर जब मैं आपको बजट दे रही हूँ एंड देन यू जस्ट लाइक ओ ये तो बहुत ज्यादा होगा, तो देन यू आंट यू वेस्टिंग योर टाइम एंड माई एनर्जी इनटू इट. अगर आप मुझे बजट बता दोगे, मुझे पता है आप कहोगे शुभांगी मुझे ये घर 25 लाख में चाहिए, मुझे पता है 25 लाख में करना है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे उसे 25 लाख में कैसे करना. इट्स I'll say it's a reverse engineering then. I have to come from that point कि 25 is my upper cap. I have to work my way down there. कि अब मैं क्या मटेरियल्स यूज करूं, मैं क्या चीजें लूं, मैं क्या फर्नीचर लूं कि वो चीज 25 लाख में बैठ जाए. आप मुझे ओपन एंडेडली बोल दे तो आपको जो ठीक लगे मैडम आप बता दीजिए. अब मैडम तो बता देंगी पर आपको सूट करेगा या नहीं वो तो आप बताओगे ना. So budget becomes it's a very taboo topic. And I don't understand. जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपसे अपफ्रंट कहते हैं ना कि मेरी 2,000 फीस है, आप अपफ्रंट दे रहे हो ना उसको 2,000 फीस, या दवाई के पैसे उसने दिए तो दवाई के पैसे आप दे रहे हो ना, वहां पे तो आप एक बार भी क्वेश्चन नहीं करते ये चीज इतनी क्यों चार्ज कर रही है या क्यों चार्ज नहीं कर रही है. डिजाइनर्स आके बताते हैं कि सर हमारी ये डिजाइन फीस है एंड एवरीबडी गोज बलिस्टिक ऑन इट कि भाई ऐसे कैसे आप इतना चार्ज कर सकते हो. क्यों नहीं चार्ज करेंगे हम क्या करने के लिए बैठे फिर. दिस इज द सर्विस आई एम गिविंग यू, राइट? आई विल charge for that service. So whenever a client becomes very iffy about paying design fees, it's the utmost disrespect you can cause a person in a professional term. Because आपने उस बंदे को हायर इसलिए किया क्योंकि वो उस फील्ड से बिलोंग करता है, वो सर्विसेज आपको दे सकता है, एंड अब आप उस सर्विस के लिए पेमेंट ही नहीं करना चाहते. यू वांट थिंग्स टू गेट डन फॉर फ्री. एंड दिस लाइन एवरी क्लाइंट वांट्स टू सी, सस्ते में जितना सस्ते में हो जाए उतना बेहतर है. अरे अब जितना सस्ते में हो जाए तो मैं कार्डबोर्ड थोड़ी ना लगा सकती हूँ आपके घर में. आप बात समझो, कोई किसी चीज का एक बेयर मिनिमम वैल्यू होगा, मटेरियल का एक बेयर मिनिमम वैल्यू होगा, टाइम का एक बेयर मिनिमम वैल्यू होता है, लेबर का एक बेयर मिनिमम वैल्यू. एंड आई फील लाइक कि वहां पे ना आई गेट वेरी एनवियस ऑफ डॉक्टर्स टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दे डू सेम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएशन जितना मैं करती हूँ, पर उनको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि वो जो मर्जी चाहे चार्ज कर सकते हो, कोई उनसे कुछ नहीं कहता है. और मैं यहाँ पे अपनी फीस लेने की बात करती हूँ, देन एवरीबडी बिकम्स लाइक ओ हमने तो अपना घर खुद ही बनवा लिया था, ये तो हमारे मामा जी ने करवा दिया था, ये तो हमारे इन्होंने करवा दिया था. तो आई डोंट अंडरस्टैंड आप मेरे को रीच आउट क्यों कर रहे हो. अगर आपको लगता है ये सारी चीज आप खुद कर सकते हैं या आपके नोन में कोई कर सकता है, तो आप किसी भी बंदे का टाइम ना खराब करें. मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इट्स वेरी वेरी वैल्यूएबल. वो इंसान अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगा देता है उस पिच को देने के लिए, बिकॉज दे वांट टू डू द प्रोजेक्ट. एंड देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स व्हेन आई हैव कम अक्रॉस अ प्रोजेक्ट व्हिच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट, एंड मैंने बहुत मेहनत मुशक्कत एक हफ्ता लगा के प्रिपेयर द एंटायर प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर द एंटायर पिच फॉर दैट प्रोजेक्ट. And when it comes down to these budgets or this design fees or these kind of stuff, और या कोई क्लाइंट ऐसे बोलेगा कि हाँ टाइमलाइन का इशू, अगर आपका घर बनेगा कंस्ट्रक्शन होगा तो समय लगेगा ना. आप मुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं 15 दिन में आपको वो चीज हैंड ओवर करके दे दूं. अगर आपको 15 दिन में करानी थी तो आपको ऐसे किसी को ढूंढिए आप जो 15 दिन में आपको करके दे दे. अब आपको वो चीज करानी में उतने दिनों में आपको पैसे भी नहीं खर्चने हैं, आपको डिजाइन फीस भी नहीं देनी है,
आप तो हाथ ही बांध रहे हैं मेरे, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी, आप बताइए मुझे। तो इस तरह की जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना, जहाँ पे सामने वाला बंदा ना बहुत लेवल पे जाके आपकी डिसरिस्पेक्ट करता चला जाता है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितनी मेहनत की है, 5 साल की डिग्री की है, आपने इतने साल काम किया है, आपने इतनी, आप साइड पे जा रहे हो, आप सारी मेहनत, इट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल लेबर दैट यू गो थ्रू व्हेन यू डूइंग दिस प्रोफेशन, एंड अगर उसकी कदर नहीं करी जाएगी तो बंदा क्यों काम करना चाहेगा। So, शुभांगी, आपने इस आई मीन आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि डिजाइन फी को लोग समझते नहीं है, और समझते नहीं है या तो इसलिए देने में उनको दिक्कत होती है. राइट। सो बिकॉज आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, राइट? सो हाउ हैव यू बीन एबल टू रिजॉल्व दिस? आपने इसको कैसे सॉल्व किया? आर यू हैव यू स्टार्टेड टेलिंग अपफ्रंट के बॉस डिजाइन फी I'm होता है, always इतना होता upfront है? about. Yeah, yeah. So whenever I ओके. present with the quotation will have those 20 line items कि हम लिविंग रूम में ये चीज कर रहे हैं, बेडरूम में ये चीज कर रहे हैं, बाथरूम में ये चीज कर रहे हैं, वो 10 15 20 चीजें जो भी आपकी हैं, with material, with sizes, everything is mentioned on the quotation. Then you come down and there is a section of the design which includes your 2D drawings, which includes your 3Ds, which includes your renders, which includes your site visits. Everything is mentioned कि ये जो फीस मैं ले रही हूँ, इस फीस में ये चीज इंक्लूडेड है. Anything outside this scope is not included in the fees. Anything outside the scope will be chargeable. So if you want to have anything else apart from this that I'm already offering, you can have it. I never deny anybody of any service, but then that will be chargeable, and unless you pay for that service, I am not providing. या जहाँ पे GST को लेके, taxes को लेके people have an issue, it's clearly mentioned that this much amount of tax is involved in these services, because it's not something that it's getting in my pocket also. I have to pay upfront to the government. I have to pay to the factory people that are working with me, because वो bills generate होते. There is no escape out of it. So everything is very detailed, very sectioned out. And I feel like even before all this, you need to respect your work and you need to respect your profession enough to say no. Because abhi I feel like the problem which happens is कि जब बंदा ना शुरू शुरू में just to start things off, आप थोड़ा सा ना इन अ वे दब जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा पहला पहला प्रोजेक्ट है, कर लेते हैं. बट आप एक चीज नहीं समझ रहे, वही क्लाइंट आपको अगर कोई रेफर करके लेकर आएगा, तो वो रेफर्ड क्लाइंट भी वही एक्सपेक्ट करेगा आपसे जो हाँ पहले जी, क्लाइंट. उनकी भी सेम एक्सपेक्टेशंस होगी. आप फिर उनसे आप ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, फिर उनके साथ आप दूसरी सर्विसेज नहीं ऐड कर सकते, आप वो चीजें नहीं कर पाओगे अगर आपने पहले वाले के साथ नहीं की. एंड इट्स अ रिकरिंग थिंग. हमारा प्रोफेशन इज स्टिल इवन टुडे more dependent upon referral clients than on any other mode of getting projects, True. because the conversion rate on a referral client is much higher. अगर कोई क्लाइंट आपके पास रेफर्ड आ रहा है, एक नोन सोर्स से आ रहा है, 50% ऑफ द जॉब इज डन. आपको उसके आगे काम करना ही नहीं पड़ रहा है. फिर तो आपको सिर्फ बताना है कि आप उनके घर के लिए क्या कर सकते. उनको ऑलरेडी फिनिशेस पता है, उनको ऑलरेडी पता है कि आप काम अच्छे से कर रहे हो, उनको वो सारे डेटा ऑलरेडी दे दिया उनके फ्रेंड ने, तो वो कन्विंसिंग आपको करनी ही नहीं है. लेकिन यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज राइट. एंड सेम थिंग इज नॉट जस्ट विद दिस, बट एनी क्लाइंट जो मुझे ऑफिस आवर्स के बाद कॉन्टैक्ट, बिग नो नो. 8 बजे के बाद ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है साइट जो मैं या कोई भी लेबर आके पूरी कर सकते. यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इट इज कैन बी डन द नेक्स्ट डे, एंड यू हैव टू वेट फॉर द ऑफिस आवर्स. बिकॉज जस्ट बिकॉज आपने किसी सर्विस के लिए मुझे पैसे दिए हैं, आप ओन नहीं कर रहे हो. एंड दैट क्लैरिटी इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो लाइन्स बहुत ब्लरी हो जाती है. मैं किसी प्रोजेक्ट पे किसी के साथ काम कर रही हूँ, आई एम इन कॉन्स्टेंट टच विद दैट क्लाइंट फॉर 6-8 months एट अ स्ट्रेच. 8 महीने में वो घर वाली बात हो जाती है. आप उनसे इतना इंटरेक्शन करते हो, आप उनका घर डिजाइन कर रहे हो, आपको उनकी रूटीन के बारे में पता है, उनके घर के मेंबर्स के बारे में पता है, आपको स्पेस के बारे में पता है. इतनी डिटेल हो जाती है कि वो लाइन बहुत ब्लरी सी हो जाती है बिटवीन योर प्रोफेशनलिज्म. और फिर वो आपके 10 बजे भी आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, रात के 1 बजे भी कॉल कर रहे हैं. दैट इज नॉट ओके. Yeah. And you really have to push yourself back and say कि नहीं, post 8 p.m. whatever time you said, I've said it 8 p.m. Post 8 p.m. you will not attend any calls, you will not attend any texts, you will not encourage this kind of a behavior. Because अगर आपने एक बार encourage कर दिया, then they will do it again because they think they can do it again. So from our side also, I'm not saying कि completely सिर्फ clients के ही है, उनकी साइड से तो वो चीज हो ही रही है, but आपको भी अपने लिए you have to kind of pull back and say it's fine, it's fine to say no to 10 projects अगर client नहीं उस चीज के लिए agree करे, but 11th one you will get a decent client, you'll get to work on a project and it will go up. But there is immense amount of patience that is required in this profession because things are not easy. Even on a daily basis, like I have 30 calls in a day at least.
बिकॉज या तो कोई मटेरियल डिलीवरी हो रही है या कोई मटेरियल प्रोक्योरमेंट होना है, किसी के यहाँ टाइल लगनी है, किसी के यहाँ मलबा जाना है, किसी का मलबा उतरना है. It is a ridiculous amount of calls to hold, and you have to be very very mentally resilient that you want to do this. Because personal life तो शुरू के I'll say मेरे तो 9 साल होने जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ तो खत्म ही हो जाती है. बिकॉज पूरा टाइम आपके दिमाग में बस यही चल रहा है, ऑफ करने के बाद भी यही चल रहा है कि अच्छा कल अब ये करना है, टीम को अलाइन करना है, इसको भेजना है, ये ड्राइंग बननी है, ये करना है, वो करना है. एंड तो दैट बैलेंसिंग things out very very early in your career is very very important. मैंने भी गलती करी है ये. I also let a client in and like वो भी मुझे 9 बजे 10 बजे कॉल कर रहे हैं. I've attended also and big mistake that I've done. So I'm just gonna say anybody who is hearing this, anybody is from my profession or maybe studying into this also, please do not encourage this. Please set your boundaries right. Please tell them that this is your working hours, 11 to 8, 10 to 7, whatever it is, whatever you've set for yourself. And please, there is no emergency in the world that you can resolve post 7 p.m. There is no labor to resolve any problem. Exactly. I mean, most of, because I mean, you definitely must be aware of this, कि most of the societies and complexes do not allow any labor to work post 6 p.m. Post 6 p.m. right? Yeah. तो वो बेसिकली AOA और RWS का रूल होता है कि आप वैसे भी 6 बजे के बाद इन सब चीजों नहीं में कर आप नहीं सकते. डील कर मैं वही सकते. कह रही हूँ कि अगर कोई क्लाइंट इतना एजिटेटेड है, उनका एजिटेशन पूरी रात रुक सकता है, कोई बात नहीं, सुबह जाके रिजॉल्व करो. सुबह सुबह चले जाओ, सुबह साइट पे क्लाइंट को आराम से पैसिफाई कर दो, उन्हें समझा दो कि क्या परेशानी है, क्या हुआ है. फिगर थिंग्स आउट वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग. एंड बिलीव मी, देयर इज नॉट वन. आई हैव डन ओवर 200 प्रोजेक्ट्स. देयर इज नॉट वन प्रोजेक्ट जिसमें कुछ गलत नहीं होता है. हर प्रोजेक्ट में देयर हैज टू बी सम फक अप दैट विल हैपन. यू विल हैव टू फिक्स इट. यू विल हैव टू कम अप विद अ क्लेवर सॉल्यूशन ऑन साइट, क्योंकि कुछ ऐसी अलग सी प्रॉब्लम निकल के आ जाएगी जिसके बारे में आपने एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. हम एक जगह सीलिंग बना रहे थे, वहां पे हमने सोचा अच्छा ठीक है इसको तोड़ के ना पूरा लेवल आउट कर देंगे, ये कर देंगे. हमने उसे तोड़ने के तो हमें पता चला वो संकन बीम है, हम उसे तोड़ नहीं सकते, वहां पे से पाइप जा रहे हैं. कहीं पे फ्लोर में कुछ इशू था कि फ्लोर से हमें बाथरूम शिफ्ट करना था, फ्लोर में पाइप डालने की जगह नहीं है, पूरे का पूरा फ्लोर उठाना पड़ा है 6-8 इंच. नहीं पता होती ऐसी चीजें. वो जब तक आप बिल्डिंग तोड़ के नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा अंदर True. क्या हुआ है True. उन्होंने वहां. And plus the bigger problem is जैसा आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि बहुत लोगों के पास फ्लोर प्लान्स ही नहीं होते. नहीं होते. You don't और have the फ्लोर होने actual के बाद भी blueprints. जो पुराने कंस्ट्रक्शन है, DDA का कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ठीक है, या किसी का इंडिपेंडेंट हाउस है, वो 20 साल पुराना बना हुआ है. 20 साल पुराने नक्शे उनके पास है ही नहीं. उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से लाइनें जा रही हैं, कौन सी लाइनें जा रही हैं, कहाँ से सर्विसेज है. वो जब तक आप तोड़ के नहीं देखोगे, फ्लोर निकालोगे नहीं, दीवारें तोड़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है अंदर. अब कहीं कहीं पे अब जैसे पहले ब्रिक सिर्फ ब्रिक कंस्ट्रक्शन होता था, अब माइवन कंस्ट्रक्शन भी होने लगा है, विच इज बेसिकली RCC का कंस्ट्रक्शन, जिसका सिर्फ पहले बीम्स और कॉलम्स बनते थे, अब उसकी पूरी पूरी वॉल्स बनने लगी. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रेंथ वाइज इट्स वेरी वेरी गुड. अब उसमें क्या नई प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम आ गई कि उसमें सर्विसेज आप चेंज नहीं कर सकते. तो जहां पे इलेक्ट्रिकल के लेआउट पड़ गए वो वहीं पे पड़े रहेंगे, जहां प्लम्बिंग के लेआउट पड़ गए वो वहीं पड़े रहेंगे. यू कैन नॉट चेंज इट. अब वो आप चेंज नहीं कर सकते. हम हर बार कोई नई चीज लेकर आते हैं, उस नई चीज की वजह से कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर हम वो नई प्रॉब्लम रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं. इट्स अ रिपल इफेक्ट. तो आपको यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल एनकाउंटर इन अ स्पेस. यू डोंट नो क्या होने वाला है वहां पे unless you're there. हर नए प्रोजेक्ट में you'll get to learn something new. हर नए प्रोजेक्ट you'll get to know what not to fuck up in the next project, and it's a ongoing learning. I've been doing this for so many years. I've done over God knows how many residences. Honestly, I've lost count at this point. Residence तो मैं इतने कर चुकी हूँ. Done commercial space. इतना कुछ करने के बावजूद सब कुछ आप प्लान आउट कर लोगे, फिर भी कुछ फकअप हो जाए, कुछ नहीं होगा. मेरे 3-4 प्रोजेक्ट थे, सब सेट हो गया, डिजाइन सेट हो गया, सब हो गया, लॉकडाउन लग गया. 8 महीने सोसाइटी ने एंटर ही नहीं करने दिया. करो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो. ठीक है, वो प्रोजेक्ट साल भर खिंच गए उसकी वजह से. सो देयर इज सम एनवायरमेंटल फैक्टर. बारिश हो गई, अर्थक्वेक आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते. जो चीज अगर वो एनवायरमेंटल फैक्टर. एंड ऑल्सो आई वुड अर्ज एवरीबडी, इफ यू स्टार्टिंग अप योर बिजनेस, जब आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो फॉर क्लाइंट टू साइन इन, प्लीज पुट दीज फैक्टर्स इन. प्लीज पुट अ क्लॉज इन फॉर दीज थिंग्स कि अगर कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, यू आर नॉट लाइबल फॉर द सेम टाइम लाइन, बिकॉज इट बिकम्स अ हैसल. जब आपने साइन ऑफ करके कुछ चीज दे दी ना, फिर वो साइन ऑफ थिंग इज हैंगिंग ओवर योर हेड.
द होल प्रोजेक्ट कि आपने तो लिखित में दे दिया, अब आपको करके देना पड़ेगा। बट वहां पे वो क्लॉजेस मेंशन करना बहुत जरूरी है कि साइट की मिसलेनियस इश्यूज की वजह से हम ये चीज अगर नहीं कर पाएंगे तो वी हैव टू रिजॉर्ट टू समथिंग एल्स। इट विल एड ऑन टू द टाइमलाइन, इट विल एड ऑन टू द मनी, इट विल एड ऑन टू एवरीथिंग एल्स, विच क्लाइंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज आपने पहले जिस चीज के पैसे दिए थे अगर वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, एंड हैव टू गो अराउंड another route, that another route requires another amount of time and another set of, like, in a way, more money that will have to be poured into this project. Maybe it will not finish in 25 lakhs, maybe it will go up to 30 lakhs, but that is not because I wanted it to go to 30 lakhs, it's because the site की requirement ऐसी आ गई कि मुझे करना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने हमने गलतियां कर करके सीखी हैं। हम बस ये कहना चाहेंगे कि आप लोग की गलती ना करें और प्लीज ये सब चीजें मेंशन करना शुरू कर दें, टाइमलाइन मेंशन करना शुरू कर दें, अपनी साइट विजिट मेंशन कर, उसमें मेंशन कर दीजिए आप 3 साइट विजिट ही जाएंगे तो 3 ही जाएंगे बस बात, या मार्केट सर्वे के लिए आप जा रहे हो वो मेंशन कर दो, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी। द मोर written documents you have for everything, the better and safer you will be. Believe me, it's a ruthless thing. Once the client gives the token money, the ticker starts and it's a ticking time bomb until that handover date, कि जब तक वो नहीं फिनिश हो जाएगा, it just hanging over your head every single day कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। Yeah, So that is very true. it's very important. Please Yeah. document all your design meetings. Please document every selection, every material, everything. Write everything down. It's a tedious task. Nobody likes to do it. Even I hate doing it, but आपको करना पड़ेगा। अगर अपने आप को सेफगार्ड करके रखना है तो करना पड़ेगा, वरना अगर आपसे कोई भी एक चीज मिस हो गई, आई एम सॉरी टू से, बट हमारे प्रोफेशन में द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। आपको तब वो चीज करके देनी पड़ेगी, चाहे आपको खुद लॉस लेना पड़े। अगर आपके पास लिखित में होगा तो ही आप जस्टिफाई कर पाओगे कि आप सही हो और वो गलत, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं वो कभी गलत नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो ऑल्दो ये जो काफी मिसलेड और मिसइंटरप्रेटेड लाइन है ये, जिसको इंडिया में बहुत कैजुअली यूज किया जाता है ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन में, दैट द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ऑल्दो लोग नहीं जानते इसका पूरा फ्रेज क्या है। करेक्ट। Right? The entire phrase goes like this, that a client is always right in the matter of choice. In the matter of choice only. Correct. Nothing else. Because everything else will be decided by the professionals. Right. In this case, which you are. Yeah. But Right? the client also has to put that trust in you, no? They have to let go of that control. आपने बहुत सही बात कही शुभांगी। The problem is that we are at a stage right now wherein we have to educate the client. Yeah. Right? वो clients को सिखाना पड़ेगा, वरना दिक्कत आएंगी। अब एक नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना जो चाह रहा था, वो बेसिकली एक मेरे और आशुतोष के हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आता है। सो हुआ क्या था कि 3 साल पहले मैंने अपना जो प्रॉपर्टी का इंटीरियर करवाना था, so this was a new 3 BHK flat which I got. It was like bare shell. So we wanted the entire interior to be done. तो पहले से ना मेरा मन था कि यार किसी पढ़े लिखे इंसान को रीच आउट करते हैं। सो सबसे ऊपर नाम आया लिव स्पेस का, राइट? सो आई वेंट विद लिव स्पेस। सो उन लोग के साथ काफी समय तक मीटिंग्स चली, डिस्कशंस वगैरह चले। Just hold on for a second. The timer went off. Yeah, let me just close. Okay. So मेरा जो है लिव स्पेस के साथ काफी लंबा इंटरेक्शन चला, और इवेंचुअली क्या है कि उन लोग ने जो कोटेशन निकाला, दैट कोटेशन वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक वे ऑफ माय बजट। सो देन वी हैप्पीली पार्टेड आवर वेज। वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम शायद आपको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, सो विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में कुछ हाउ डू आई पुट दिस, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटीरियर डिजाइनर्स मार्केट में बहुत हैं। और ये मैं क्यों उन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, राइट? मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उन्हें नोट गिनना आता है और काम करवाना आता है लोगों से, लेबर से, बट इसके सिवा, मतलब पिंटरेस्ट वगैरह से डिजाइन कॉपी करने के सिवा, दे आर जस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटीरियर डिजाइनर्स। तो एक ऐसे से ही मेरा पाला पड़ा, तो उससे मेरा पाला पड़ा, मैंने जैसे तैसे अपना काम करवाया। एंड देन जब आशुतोष की बारी आई, आशुतोष ऑल्सो बॉट हिज अपार्टमेंट राइट आफ्टर मी। सो मैंने आशुतोष से वो शेयर किया एक्सपीरियंस, बिकॉज एज यू वेरी वेल सेड कि वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस चलता है। सो आशुतोष ऑल्सो वांटेड
कि यार तेरा घर तो ठीक ठाक दिख रहा है, अब ये क्या मतलब कैसे करना है, इसके साथ करना है, कैसे करना है। तो आई टोल्ड हिम कि, मैंने कहा देख भाई, घर ठीक ठाक इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो घर मेरे चॉइस के हिसाब से बनवाया है, उसके चॉइस के हिसाब से नहीं, जो उसने मुझे आइडियाज दिए थे। मैंने कहा इन योर केस आई वुड नॉट रेकमेंड द सेम गाय Right. बिकॉज आई हैव हैड माई फेयर शेयर ऑफ इश्यूज, ठीक है Correct. ना, जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे रहे। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपने इंटीरियर के काम में इस बंदे को लो, you better Right. find somebody else. So then Ashu was able to find somebody else for this work, and then I know कि Ashu had his fair share of issues with that guy, right? उस इंसान के साथ उसको अपने इश्यूज आए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन, शुभांगी, सेम रीजन था कि both of these folks were self-proclaimed interior designers, Right. Right. right? And how Right. they are calling themselves interior designers because एक सोसाइटी, एक फ्लैट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी में there are 900 flats. Right. So out of these 900 flats, somewhat around 70-80 flats ये लोग कर चुके हैं, Correct. right? तो अब होता क्या है, वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं, Hmm. जहां जहां Hmm. उनका काम चल रहा होता है वो आपको दिखा देते हैं Correct. कि देखिए सर हमारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, लड़के लोग सब लगे हुए हैं, हमारा काम कभी रुकता नहीं है, वी हैव मल्टीपल साइट्स गोइंग ऑन। तो इस तरह करके दे ट्राई टू ऑल्सो कम अप टू योर बजट, Yeah. एंड दे से कि हाँ हम आपके बजट में कर देंगे ऐसा वैसा, जो कि कभी नहीं होता, बजट हमेशा वो। I तो you complete your story, then I'll tell. So the question I had here, Yeah. and I think that your response would definitely help a lot of people understand. So the thing is, कि how do you, as an educated architect, how do you and people like you, how you people are dealing with these kind of folks in market? इन लोगों से आप कैसे compete कर पा रहे हो? See, the initially, I'll tell you, there was a very big fight that happened with COA. COA is Council of Architecture in India. Okay, that's the basically the top body which is kind of running the whole how the structure is working around and क्या हमारे ground rules होते हैं, license and everything is coming from COA only. तो अभी a couple of years back, COA did what कि उन्होंने draftsmen जो होते हैं, basically people who जो सिर्फ नक्शा बनाते हैं ड्राइंग पे, सॉफ्टवेयर पे, उनको उन्होंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया। एंड देयर वाज अ ह्यूज बैक एंड राइटफुली सो। वी नॉट इडियट्स। अगर हमें ऐसे इतनी आसानी से लाइसेंस मिल जाना था तो हम लोग सारे पागल है कि हमने 5-5 साल पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत मुशक्कत करी है, उसके बाद हमें लाइसेंस मिला है काम करने के लिए। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम दैट अराइज पोस्ट दैट वाज दैट क्योंकि किसी को भी वो लाइसेंस दे रहे थे तो उस लाइसेंस की वजह से वो लोग वो सारी चीजें क्लेम कर रहे हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं, पर वो काम कर नहीं रहे, विच इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द इंटायर कम्युनिटी। सी एनीवे हम आर्किटेक्ट्स की तादाद बहुत कम है, एक्चुअल आर्किटेक्ट्स की तादाद तो बहुत कम है ओवरऑल अगर आप देखो, ठीक है। एंड उसमें भी अगर कुछ लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी है, जिन्होंने डिग्री नहीं कर रखी है, जिन्होंने चीजें सीखी नहीं है, अगर उनको वही पावर मिल जाए बेसिकली, अगर मैं कहूँ जो हमारे पास है फॉर ड्रॉइंग्स, फॉर साइनिंग ऑफ थिंग्स एंड एवरीथिंग, तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब क्लाइंट को तो नहीं पता। अब अगर आप बैठे हो, आपने किसी की, उन्होंने कुछ, मैं कहती हूँ किसी और की वेबसाइट से उठा के फोटोज 4-5 उठा के डाल भी दी और आपको दिखा दी कि जी जी हमने तो ये काम करा हुआ है, और एक उन्होंने लोकल कारपेंटर पकड़ा कहीं से, ऐसे 10-12 फ्लैट किसी के पकड़ ली किसी सोसाइटी में, काम करवाना शुरू कर दिया, कहेंगे देखिए हमने तो आप ही की सोसाइटी में काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो जाता है, जो पहली चीज, सबसे पहला जिस डिस्कशन जो मैंने आपसे किया था कि क्लाइंट हमेशा प्रेफर उस इंसान को करेगा जो उनके एग्जैक्ट फ्लोर प्लान पे चीजें करके दिखा दे। ये कैच वहां पे आता है सारा का सारा। उन्हें लगता है कि ये बंदा उन्हीं की फ्लोर प्लान पे काम कर रहा है, उन्हें लगता है ये बंदा उन्हीं की सोसाइटी में काम कर रहा है, इसने चीजों के साथ टाई अप कर रखा है, तो इसके साथ जाने में चीजें सस्ती पड़ जाएंगी हमें। Exactly. ठीक है। अब वो This is और इनिशियली exactly how they portray. they'll quote 1/3 of the actual cost of the project। ठीक है। That's true. वो 20 लाख के प्रोजेक्ट को 7 लाख में करके कह देंगे सर 7 लाख में कर देंगे हम तो आपका पूरा प्रोजेक्ट। मुझे पता है यहाँ बैठे बैठे कि नहीं होगा 7 लाख में, ठीक है। समवेयर इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट ऑल्सो नोज कि नहीं होगा 7 लाख, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है और उनके सामने एक लिविंग प्रूफ है, प्रोटोटाइप है बेसिकली टू लुक एट, तो उस वजह से दे फील लाइक नहीं नहीं ये बंदा तो कह रहा है, इसको हम 3 गुना पैसे क्यों दे। अब क्या होता है, वो प्रोजेक्ट चालू होएगा, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके सर इसके लिए 2 लाख और चाहिए, सर इसके लिए 3 लाख और चाहिए, सर इसमें तो ये तो काम खराब हो गया, तो मटेरियल ही खराब हो गया, हमें ये तो नया बैच Exactly. करना पड़ेगा। एंड वो करते 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 20 का 25 लाख भी चला जाएगा, आपको This पता is नहीं। how the vicious circle begins. एंड मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल, अगर उसमें 20 लाख लगेगा, मैं आपको पहली कोटेशन में ही बोलूंगी कि 20 लाख ही लगेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे, मेरा एथिक्स मेरे को अलाउ नहीं करेगा कि मैं आपसे झूठ बोलूं। एंड आई विल से कि दिस इज द
bare minimum cost that your project will incur. The problem is by the time clients realize this, they're halfway in that project. और halfway in that project जब वो उस बंदे को निकाल के किसी को लेना भी चाहते हैं, आधे में प्रोजेक्ट्स कोई उठाना नहीं चाहता, एंड उसके पीछे भी बहुत गुड रीजन है. अब उस बंदे ने जिस भी मटेरियल में काम किया मुझे तो नहीं पता. अब अगर मैं उनके खराब मटेरियल के साथ अपना नया मटेरियल जोड़ू और कुछ भी इशू आता है, फिर कौन, क्योंकि प्रोजेक्ट हैंड ओवर मैं करूंगी तो फिर मैं लाइबल हो जाऊंगी. इसलिए मिड प्रोजेक्ट में कोई हाथ नहीं डालो कभी भी. तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, जो भी इंसान अपना घर इस टाइम पे रेनोवेट कराना चाहता है, अपना कोई ऑफिस स्पेस रेनोवेट कराना चाहता है, प्लीज हैव अ वेरी ओपन एंडेड डिस्कशन विद योर डिजाइनर. प्लीज अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, लुक एट देयर क्रेडेंशियल्स, लुक एट वेदर दे आर द राइट पीपल, दे आर हु दे आर क्लेमिंग टू बी. दैट इज नंबर वन. आप इनिशियली कुछ पैसे बचा. अब मैं आपको कल एक मीटिंग में गई हुई थी, शाम की ही बात है. एक मेरठ का प्लॉट है जिसको हमें कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट आउट करना है इनटू अ हॉस्टल, एंड उनके ना एग्जिस्टिंग पुरानी वहां पे कुछ स्ट्रक्चर था, तो उसके एग्जिस्टिंग पिलर्स हैं. अब वो क्लाइंट चाह रहा था कि वो एग्जिस्टिंग पिलर्स में यूज करें. मैंने कहा ठीक है सर, मैं यूज कर लूंगी, आपके पास कोई नक्शा है उसका आप मुझे दे दीजिए, मैं को स्टडी कर लूंगी. अब उनके पास कोई नक्शा नहीं. अब आप मुझे बताइए, बाहर से विदाउट एक्सरे विजन हाउ एम आई सपोज टू नो कि उस कॉलम में क्या मटेरियल लगा हुआ, उस कॉलम में कितना सरिया डाला हुआ है, उस कॉलम में किस ग्रेड का सीमेंट डाला हुआ है. मुझे स्ट्रेंथ ही नहीं पता उस चीज की. अब अगर मैं उस पुराने पिलर को एज स्ट्रॉन्ग एज माई न्यू पिलर कंसीडर करके कंस्ट्रक्शन खड़ी कर दूं और कल को वो बिल्डिंग गिर जाए, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है. अब उनके कुछ लाख रुपए बचाने के चक्कर में जो वो सोच रहे हैं कि वो पिलर्स खड़े रहेंगे तो हमें उन पिलर्स का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो बचाने के चक्कर में अगर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन गिर जाए तब कितने का नुकसान हो जाएगा. और इनिशियल वही फ्रिक्शन है. क्लाइंट्स को हमेशा ये लगता है कि शुरू में हम कुछ पैसे बचा लें, ठीक है, और वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा घुस जाता है एंड में, क्योंकि वो जो लोग जो मटेरियल लगा के देंगे, वो लोग जो काम करके देंगे, वो सैंक्शनेबल नहीं होगा. देन यू हैव टू गेट रिटर्न. लेकिन तब तक आपने अपने आप को बजट वाइज इतना एग्जॉस्ट कर लिया है कि उसके बाद अगर आप चाहें कि आप किसी अच्छे बंदे को अफोर्ड करें तो आप कर नहीं सकते. आपका बजट अलाउ नहीं करता, आपका एग्जैक्टली पॉकेट व्हाट अलाउ व्हाट हैज हैपेंड टू मी कि नहीं. क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे राहुल के, तो मैंने भी एक बंदे को ही हायर करा था. ही वाज अगेन सेल्फ प्रोक्लेम्ड. हम्म. तो उसने मुझे अपने साइट्स दिखाए कि व्हाट काइंड ऑफ फिनिश आई कैन गिव यू, व्हाट काइंड ऑफ हम्म. मटेरियल वी यूज. तो मैंने भी कम से कम 6-7 प्रोजेक्ट्स उसके देखे जो उसने डिलीवर कर रहा था. एंड द ओनर्स लिविंग इन दैट प्लेसेस आल्सो, उन्होंने भी बहुत प्रेज करा कि नहीं नहीं ये तो भैया तो बहुत ही अच्छे हैं, फलाना ढिमकाना सब कुछ. जिस फिनिश की वजह से मैंने उस बंदे को हायर किया था मुझे नहीं मिला लास्ट तक. करेक्ट. और जब प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ ना, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग द फ्लॉज कि या. जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो फिनिशिंग जो क्वालिटी, मुझे कुछ भी नहीं मिला. तो इवन करेक्ट. तो उसने मेरा काफ़ी खर्चे कम में कर दिया. एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ ठीक है यार, सेम फिनिश अगर मुझे कम पैसे में मिली है, व्हाई शुड आई वेस्ट अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली. मनी. बट देन राहुल एंड मी आर ऑन सेम पेज नाउ कि अगर हमारे पास बजट है अभी, या. वी विल सेव लाइक फॉर अनदर 6 months ऑल्सो टू पे रेप्यूटेड आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर कि आप पैसे ले लो, आप काम करवाओ, क्योंकि मुझे उस लेवल का चाहिए बेसिकली. करेक्ट. सो दीज आर लर्निंग्स तब होती है जब आपके साथ एक बार, आप कहते हैं एक बार आपका कट I गया, agree. तब देन I यू agree. अंडरस्टैंड द See, इम्पोर्टेंस. but my problem only is कि पीपल लाइक अस, हमारा गोल यही रहता है कि हम आपको उस स्टेज तक ना जाने दें. इसलिए हम राइट. शुरू में कह रहे हैं आपको कि मेरी बात मानिए, ये काम इतने में नहीं हो सकता, ये फिनिश इतने में नहीं आ सकता. पर कोई XYZ रैंडम सा बंदा आएगा ना, बिल्कुल ऐसे दिहाड़ी मजदूरी वाली लैंग्वेज में आके, एंड ही बी लाइक ऐसे कैसे ये मैडम जी तो आपको गलत गलत बता रही हैं, ये तो आपको ज्यादा चार्ज करने ऐंठने की कोशिश कर रही है, हम तो इनके घर में भी कर रहे हैं, हम इनके घर में भी कर रहे हैं, हमने तो ये काम इतने में कर दिया, पता नहीं कैसे नहीं कर दिया. कहाँ का लोकल मटेरियल लगा के कौन सा लोकल बोर्ड लगा देंगे, आपको क्या ही पता है. तो वो तो लाके लगा देंगे, फिर वो बाद में जब 2 साल बाद वो दरवाजे उखड़ के आपके हाथ में आ जाएंगे, जब वो प्लाई अलग से निकलनी शुरू हो जाएगी, आपको तब लगेगा कि अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पहले ही सही खर्चा कर देना चाहिए. राइट. माई होल पॉइंट इज कि अब उसमें आप, मैं अपनी तरफ से आई कैन बी ऑनेस्ट विद यू, आई कैन एजुकेट यू एज मच एज पॉसिबल, बट यू हैव टू ऑल्सो ट्रस्ट माई डिग्री एंड माई एजुकेशन ऑन इट ना, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपने खर्चना है, अल्टीमेटली रहना भी आप ही को है उस जगह पे, मेरे को नहीं रहना है. अगर उस टाइम पे भी आप वो सारी चीजें कम्प्लीटली निग्लेक्ट करके सस्ते सस्ते, और वो नहीं होता जैसे सेल में कपड़ों को 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट के बैनर्स नहीं लगे होते हैं जगह जगह,
एंड लोग उसके चक्कर में वो लेने चले जाते हैं, देन दे रियलाइज कि इट्स अ डिस्कार्डेड माल दैट दे आर बाइंग बेसिकली एट अ चीपर कॉस्ट। इज द सेम सिचुएशन। अब वो कोई ठीक ठाक कपड़े का ब्रांड की कोई कंपनी होगी जो ठीक ठाक मार्केट कर रही होगी, वो कहेंगे कि अरे आप तो इसके इतने पैसे ले रहे हैं, ये लोग तो 1/10 में दे रहे हैं हमें, हम इनसे क्यों ना लें। वो 1/10 वाली चीज चलेगी भी तो 1/10 ही ना। लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 1/10 देन। एंड व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, आप जब घर बनवा रहे हो, आप घर कम से कम 5-8 साल के लिए बनवा रहे हो, उससे पहले तो आप नहीं बदलोगे इतना खर्चा करने के बाद। तो यू हैव टू लुक एट इट और दैट 8 ईयर साइकिल। अगर आपने, मैं कहती हूँ आपने 20 लाख खर्चे, वो 20 लाख आप 8 साल के लिए खर्च रहे हो, एक बार के लिए नहीं खर्च रहे। दैट माइंडसेट नीड्स टू चेंज कंप्लीटली। आप उसे वन टाइम कॉस्ट की तरह लुक देख रहे हो और हम उसे लाइफ साइकिल की तरह देख। लाइफ साइकिल, बिल्कुल। बहुत फर्क है। मैं वो कोई मटेरियल या कोई चीज ऐसी लगा कर ही नहीं दूंगी जो चले ना, सो क्योंकि सो वो शुभांगी, मेरा। वन क्वेश्चन कि आपका स्टाइल क्या है। सो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कहा कि यू आर फ्री टू चूज योर सिलेक्शन ऑफ व्हाट यू हैव डिजाइंस इन माइंड। सो क्या आपका क्लासिक है या मॉडर्न है, मिनिमलिज्म है, किस टाइप का आप प्रेफर करोगे इफ यू वांटेड टू डिजाइन योर हाउस? See, that's, I think it's a biggest challenge to have, because as a designer, you always like something new, then you want to have that new. I think मेरे लिए I've always been a very classy, contemporary kind of person. I like to add things to accent it. जैसे I'll add elements to accent it. Whatever new is going on, मैं उसका कुछ एक element, एक चीज मैं उसमें जरूर add कर दूंगी कि to bring that to life. But I always work with that motto कि आपका जो पैलेट होता है, ओवरऑल एक जो बैकग्राउंड होता है, कीप दैट एज न्यूट्रल एज पॉसिबल। क्योंकि फिर उसके बाद ना आपके पास चीजें ऐड करने का हमेशा ऑप्शन, आप उसे किसी भी लुक में चेंज कर सकते हो। हर 2 साल में चेंज कर लो, आपकी मर्जी। आपको डेकोर चेंज करना है, बेडिंग चेंज करनी है, पर्दे चेंज करने हैं, रग चेंज करना है, इट्स अ न्यू रूम ऑल टुगेदर अगेन। बट ओनली एंड ओनली इफ यू, आपका जो बैकड्रॉप है, आपका जो फिटेड फर्नीचर है, आपके जो वॉल्स एंड एवरीथिंग है, उनका कलर बहुत न्यूट्रल क्लासी जोन में है, तो उसमें आपको बार बार नहीं करना पड़ता। क्योंकि अभी जैसे आपको कोई प्रिंट पसंद आएगा, कुछ पसंद आएगा, 2 साल के बाद आप पक जाओगे उससे। विद इन 2 years you'll get tired of it, you'll like it's just too much. So it's always, अगर आप, you're one of those people who are very very finicky and who gets bored out of things very very quickly, do not put up something very very gaudy in your place. मत डालो, go simple, चीजें ऐड कर लो, वॉलपेपर लगवा लो। वॉलपेपर एक दिन में लगते हैं और एक दिन में उतर भी जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती दीवारों में। मत कराओ ये बहुत ही बड़ी बड़ी वो पीओपी के डिजाइन एंड एवरीथिंग एंड ऑल कर्वी एंड कटआउट्स एंड एवरीथिंग। डोंट डू दैट इफ यू आर नॉट इनटू इट लाइक कंप्लीटली, बिकॉज आपको वो 5-6 साल में, 10 साल कम से कम वो चीज देखनी है। आप 10 साल देखने को राजी हो तो कराओ, वरना मत कराओ। पीपल गेट बोर्ड आउट ऑफ कलर वेरी वेरी इजिली। अब मेरी एक नेबर में आंटी थी, मैं किचन बनवा रही थी, मुझसे उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा बताओ कौन सा कलर कराऊं। मैंने उन्हें बड़े क्लासी सा कॉम्बिनेशन निकाल के दिया कि मैंने कहा आप ये करा लो, नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, इट विल नॉट लुक अप टू मच। पर उनका स्टाइल ही चटक है बिल्कुल। तो जब उनका स्टाइल ही चटक है, तो मैं कितना भी क्लासी उनको दे दूं, उनको नहीं पसंद आने वाला। तो she went with very bright red, sparkly kind of a shimmer, kind of a laminate for her kitchen. And the day I entered her kitchen, for 10 minutes, I was like, where am I? What am I looking at? I got so confused. My eyes were so disturbed watching all this. But she was very happy. So design is so personalized and so, I'll say, fluid. Just because I like something doesn't mean you like it, and vis-a-vis. So as a designer, as a creative person, it's very very important for you to forget that this is not your space, this is their space. Design for them, design for your client. अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही मुझे, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट अगर वो उनके इथॉस में है, उनके कलर पैलेट में है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई एम, I like simple colors, but somebody coming from Rajasthan will not like. Somebody living in Bangalore will not like. उनको चाहिए चटक, उनको चाहिए कलर, उनको चाहिए उनका घर रेनबो जैसा। तो बना के दे दो आप रेनबो जैसा। See, the point is, at the end of the day, they need to live in that space, you don't. तो कभी And ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बुलाया, हायर करा, और आपने मुझे बताया कि ये कलर कॉम्बिनेशन कर लो एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक वेरी स्टबन कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, एंड देन हाँ बाद में जब बन गया देन आई रियलाइज कि यार नहीं यार ये तो सही नहीं लग रहा। तो ऐसा कभी हुआ है आपके हाँ, साथ? एक बार नहीं, 1000 बार हुआ है, हजारों बार हुआ है। देयर वाज दिस क्लाइंट जिनका मैं घर डिजाइन करी, दिस इज 6 years बैक। दे आर फ्रॉम बिहार। Okay, now you, anybody who's been to Bihar would know
they like very gaudy orange, red, pink, blue kind of colors, okay? And they love to show it off वाला चीज, उनका घर लगना चाहिए कि उनके घर में पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है? तो अब मैं उनका घर डिजाइन कर रही थी। आई कम फ्रॉम कंप्लीट ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है? तो अब मैं उनका घर डिजाइन कर रही हूँ, मैंने उन्हें बड़े क्लासी से कॉम्बिनेशन दिए, मैंने आई केप्ट इन माइंड कि वो लोग वहां से हैं, तो आई केप्ट सम प्लेसेस थोड़ा सा ब्राइट, कलरफुल एंड एवरीथिंग, बट बैलेंस्ड। उन्होंने मेरे इतने मना करने के बावजूद अपनी किचन की सीलिंग ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज, आई माइट ऐड, सिट्रस ऑरेंज कलर की सीलिंग है उनकी किचन की, और अंदर के जो किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो नीचे नियॉन ग्रीन है और ऊपर देर सम तो ब्लू या समथिंग। तो अगर आप उस किचन में घुसते ही आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहीं तो ऐसे डिस्को टाइप की जगह पे आप बिल्कुल आ गए हो, या कुछ राजस्थान का वो नहीं होता है जो वन डे ट्रिप काइंड ऑफ प्लेसेस होती है ना, जहाँ पे सब हर जगह रंग है, हर जगह ही रंग दिखाई दे रहा है आपको, वो वैसी किचन उन्होंने बनाई। अब बड़े खुश हैं वो उससे, बहुत खुश हैं, ठीक है? शुरू शुरू में बहुत खुश थे, अपने सारे फ्रेंड्स को ला ला के दिखाया, रिश्तेदारों को ला ला के दिखाया कि जी देखो। और मैंने उनसे उसी दिन कह दिया, मैंने कहा मैंने ये किचन नहीं बनाई, प्लीज किसी के सामने ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं कि किचन मैंने बनाई, प्लीज पूरा घर मेरा है, ये किचन आप प्लीज, मेरा नाम भी लेने की जरूरत नहीं है। So Shubhangi, I'm so glad that Ashutosh has a better taste, though he's from Bihar. Ashu is from Bihar, but I'm telling I'm you, so happy that he has a Delhi accent. you have not seen the kind of clients I've seen, man, honestly। उन्होंने सब कुछ कराने के बाद फिर उन्हें 6-8 महीने के बाद लगा कि ये रंग थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो मैंने कहा अब मैं क्या ही कहूँ, हाँ लग रहा होगा। कहते नहीं, अब बताओ, अब तुम बताओ कि फिर कौन सा वाला करा ले। मैंने कहा मेरे से पूछने का कोई फायदा नहीं है, आपने कराना अपनी मर्जी का ही है, आप अपनी मर्जी का करा लो, जो उनसे मर्जी आपकी वो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड ही लाइक नहीं, फिर बाद में डिजाइनर की बात तो सुननी पड़ेगी, डिजाइनर ने घर किया है, ऐसे कैसे हम डिजाइनर के खिलाफ जा सकते हैं। वेरी स्वीट पीपल, वेरी एक्सट्रीमली स्वीट पीपल, एंड दैट इज आई थिंक they made me do 35 iterations, 35 iterations of their home. There was not a one color left that I did not give them in that iterations, and I had to do that because they were my neighbor in some older society, तो उनका वो पर्सनल राउट था, तो मैं मना भी नहीं कर पा रही। बट दैट डे, उसके बाद से मैंने डिसाइड मैं नहीं लूंगी पर्सनल, कभी नहीं, जीवन में नहीं लूंगी पर्सनल, क्योंकि वहां पे ना आपका वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वो आ जाता है, आप बिल्कुल पूरी तरह प्रोफेशनल, पूरी तरह ऐसे वो भी नहीं हो सकते उनके साथ, और आप मना भी नहीं कर सकते, और फिर वो बेटा बेटा वाला फैक्टर आ जाता है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ कुछ। उन्होंने घर बुला बुला के अपने 8-8 बजे मेरे को मीटिंग कराई है कि नहीं नहीं घर आ जाओ तुम, और फिर ऐसे, और इतने मतलब दे सो वार्म एट हार्ट, ठीक है? तो दे वांट टू फीड मी सो मच। अब वो रात के 9-9 बजे उन्होंने मेरे को गाजर का हलवा खिला दिया, मैं खाती भी नहीं हूँ रात के 9 बजे खाना, फिर भी खिलाए जा रहे खिलाए जा रहे। आई लव योर हॉस्पिटैलिटी, बट बिलीव मी दिस इज नॉट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस आई वांट। तो आई वुड नेवर वर्क ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट, बिलीव मी। आपके किसी भी रिश्तेदार है, प्लीज रेफर देम टू योर फ्रेंड्स, प्लीज रेफर देम टू योर कॉलीग्स और समथिंग। डू नॉट डू दैट प्रोजेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज वहां पे वो पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्री खत्म हो जाती है, आप बोलने लायक भी नहीं रहते हो। एंड फिर वो वैसी वाली बात है कि अरे वो हो तो घर की ही बात है, आप क्या ही फिर पैसा भी क्या ही अब मांग बोल भी। मेरे मॉम डैड दोनों बेचारे ऐसे गऊ टाइप के हैं, ठीक है? उन लोगों के बस की भी नहीं है कि वो किसी सामने जाके बोल दे कि नहीं नहीं इसके तो इतने पैसे बनते हैं। अब जब वो ही नहीं बोल रहे हैं जिनके फ्रेंड है वो, तो मैं तो सामने से क्या बोलूं? तो मैंने उस दिन हाथ जोड़ लिया था, मैंने कहा कभी जीवन में नहीं करूंगी मैं ये, किसी और को काम करना है, मेरे मेरे नोन में कोई भी आएगा, आई रेफर देम टू एनी ऑफ माई क्लाइंट्स, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज करिए, राजी खुशी करवाइए काम, जो पैसा लेना है लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आई एम आउट ऑफ दिस पिक्चर। मैंने करना ही नहीं कभी किसी पर्सनल का काम, कभी भी नहीं। और उस दिन वही था कि वहां पे उनके घर में आई हैड टू पुट माई ईगो डाउन एंड से कि ठीक, उनको रंग बिरंगा चटक प्रिंटेड घर चाहिए, उनको दे दो, इट्स ओके, इट्स नॉट योर हाउस, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस शेड, यू हैव टू completely put your head down and be like fine। उन्होंने अपने बेडरूम में देयर इज दिस, अगर आपने देखा हो ऐसे बेडशीट टाइप का प्रिंट है, वो प्रिंट पूरी बेडरूम की दीवार पे है, बेड के पीछे। मैं क्या कहूँ इस चीज, मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बची थी वहां। मैंने कहा ठीक है आप करा लीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है आप करा लीजिए, मैं मना नहीं कर रही। आप बस मैं 6 महीने में ना इतना थक गई थी कि मैंने कहा था अब आपको जो मैंने आप करा, क्वालिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन रंग प्लीज मुझसे मत पूछेगा। मैं थक गई थी उस प्रोजेक्ट से, टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी टायरिंग प्रोजेक्ट फॉर मी।
But you will encounter these kind of clients. You just have to be very very prepared कि आपको सर झुका के आपको करना ही पड़ेगा, कि वो अगर आपकी नहीं मान रहे तो फिर आप छोड़ दो, फिर उनको हरा नीला सतरंगी जो बनवाना है बनवाने दो, उनको खुश रहने दो। एट द एंड ऑफ द डे वो आज भी उनके घर में कोई भी आता है बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कि जी हमारे तो ये डिजाइनर थी, उन्होंने घर बनवा के दिया। ठीक है जी भाई, खुशी खुशी बता रहे, क्या दिक्कत है, ठीक है, I think प्यार that I think that example is not good for your portfolio. No, it's not, but I'm just telling कि a lot of times other clients have happened जिन्होंने 10-10 साल के बाद भी they've come back to me, जिनका मैंने पहले पहले घर बनाया था, बहुत first projects थे मेरे, and after 10 years also they could have gone to anybody, they could have hired anybody, and they came to me, they texted me कि नहीं हमें आपसे करा। even before this आपने लिव स्पेस का नाम लिया तो I was working with a similar company, उनकी rival company है, उसमें मैं काम कर रही थी। समझ गया। एंड हाँ, एंड उसमें भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो वहीं के क्लाइंट्स थे ऑब्वियसली, एंड उन्होंने मुझसे कहा भी कि अरे आप अलग से प्रोजेक्ट कर लीजिए, हम कंपनी के थ्रू नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ द मनी एंड चार्जेस एंड व्हाटएवर। बट वही वाली चीज है कि I have my ethical obligation. I'm working in a space and I cannot then undercut them and be like, yeah, I have to take up this project by myself. So I very politely said no. I didn't really disrespect them in any way also. I just said कि sir, I'm an employee and मेरे लिए ये चीज करना प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा। अगर आपको उनके बजट से इशू है, आप प्लीज बजटिंग के लिए मार्केटिंग की टीम है, यू कैन हैव अ मीटिंग विद देम, आई विल टेल देम फ्रॉम माय साइड कि ये चीजें हैं, वील सी, विल लुक इनटू ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड व्हाटएवर। आप चाहे तो पार्टनर प्रोजेक्ट्स, आई गिव देम ऑल द ऑप्शंस दैट वर अवेलेबल फॉर मी फ्रॉम माय साइड, जो मैं उन्हें दे सकती थी। बट फॉर मी टू टेक अप दैट प्रोजेक्ट unethically was not okay, and that also you will come up, you will have that opportunity, or you'll be at that kind of two roads kind of a place in your career, that you may be given a place, or you may be in a situation wherein you can take it up yourself and undercut the place you're working. But I don't think it ever ends, right? And I don't think you'll ever, at least if you have a conscience, I don't know about everybody, if you have a conscience, it will really really hamper you. So I would not suggest anybody to do this, because जिस कंपनी के बेसिस पे जिसने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, जो आपको शोकेस कर रहा है, जो आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू टेक अप प्रोजेक्ट्स, टू डू दीज थिंग्स एंड टू टेक चार्ज ऑन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, वहां पर उस चीज को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना, उस चीज को लेके अनग्रेटफुल हो जाना is not right. Clients will always ask for somebody who they will always try to get things done at a cheaper cost. That will never go away, and that's part and part of the project. But you have to draw a line कि कहाँ जिसके beyond आप नहीं step out करोगे अपनी ethical obligation। तो I have let go of so many projects, and probably अगर वो project मैंने किए होते तो मेरे monthly salary से ज्यादा ही आ रहा होता मेरे को एक project का ही, ये तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन my heart didn't allow me to do that, so I didn't। हाँ, but बाद में when I left the organization, when they reached out to me later and said कि they want to get a project done, that time I was happy to take it up, because तब I was not liable by these laws, I was not an employee anymore, I can take up any project now independently because it's not attached to the company's project, it's not attached to that profit at all. So at that point of time it's fine। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करो, अगर आप अच्छा रेपो बिल्ड करो अपने क्लाइंट के साथ, तो इवन आफ्टर years of it they will reach out to you to get another project। that That is repo so true. building, that relationship building is very important। Yes. बहुत नेटवर्किंग, आपकी आधी नेटवर्किंग इज देयर ओनली, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो एक क्लाइंट आपके लिए कितने और डोर्स ओपन कर दे कहाँ कहाँ पे। सो हर प्रोजेक्ट में ट्राई टू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, हर प्रोजेक्ट में डू द बेस्ट दैट यू कैन पॉसिबली डू फॉर दैट क्लाइंट। दे नीड टू फील दैट यू आर ऑन देयर साइड, नो मैटर किस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो। अगर कोई चीज गलत हो रही है, यू हैव टू पॉइंट इट आउट, यू हैव टू रेज अ वॉइस, व्हिच आई डिड। वहां पे भी आई डिड, जिसकी वजह से बहुत क्लैशेस भी होते थे, ऐसी बात नहीं होती, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दे ऑलवेज वांट प्रॉफिट, दे ऑलवेज केयर अबाउट प्रॉफिट, दे डोंट रियली केयर अबाउट के उसमें अगर क्लाइंट का कट भी रहा है कहीं कहीं पे कट जाए, इट्स फाइन। बट इफ यू इंश्योर, आपके पास भी इतना वो होता है, पावर होता है, इवेंचुअली होता है, इफ यू वांट टू टेक अप राइट डिसीजंस फॉर योर क्लाइंट यू कैन, बट वहां पे यू हैव टू केयर इनफ फॉर दैट। आप करोगे तो ही होगा, छोड़ने को तो सब छोड़ सकते हैं, हम भी छोड़ सकते हैं, बट इफ यू फील लाइक, इफ यू डिजाइन इट फॉर योर, मतलब आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि वो आप अपने घर
की तरह ही कर रहे हो उस चीज को, तब आप उसको उतना रिस्पॉन्सिबली करोगे, मुझे ये लगता है। बट वैसे ही है, हमने एक शिमला का, पापा के फ्रेंड थे, फ्रेंड के फ्रेंड थे एक्चुअली, नॉट डायरेक्ट, उनका शिमला का रिजॉर्ट डिजाइन किया था हमने। उसमें मेरे को पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं कराना था, मुझे सिर्फ ड्राइंग्स देनी। दे वर वेरी वेरी हैप्पी, दे हैप्पीली पेड अप फ्रंट, दे डिड ऑल दैट। मैंने आइटरेशंस भी करके दी, राजी खुशी करके दिए सारा कुछ। बट वहां पे ना वो हिचक नहीं थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि व्हाट वैल्यू एम आई ब्रिंगिंग टू देम। तो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपको सामने वाले की भी उतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जितनी आप चाहते हैं कि वो आपकी करे। तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स एंड ये सब तो ऐसे ही ऐसे ही चलता रहता है। वो अब लिप्सिस का नाम ले लिया था, देयर सो मेनी थिंग्स बट आई कांट से, बट So हुआ क्या था कि आप ही की तरह ना, somebody was there exactly like you. So there was this girl, she was trying to help us, plan everything just like you. So by the end of it na, she was the one who came to me and said कि राहुल सर ऐसा है कि आप लोग ना कहीं से करवा लीजिए, बट आप लोग यहाँ से मत करवाइए। या तो ही because नोज she व्हाई। knew, yeah, या she knew the mechanics of the process जो behind the scenes चल रहा था. So that's why she, after couple of months, she came to us and she herself, she suggested that you should probably continue somewhere else, because there's a lot going on and I'm not in a position to tell you everything. करेक्ट करेक्ट। सी So एज एन एम्प्लॉय आप she किसी had a काम she definitely had a bigger morale, जिसके चलते हम्म। उसने खुद ही बता दिया. या So नहीं, तो that देयर was आर the टाइम्स आई reason. हैव डन दैट, आई हैव सेड दैट टू क्लाइंट अपफ्रंट। अगर मुझे पता है कि कुछ चीज ओवर प्रॉमिस हो रही है, एंड मैं वहां पे इतने साल रह चुकी हूँ कि मुझे पता है वो चीज नहीं प्रैक्टिकल है, वो नहीं हो Exactly. पाएगी, मेरा जमीर उस चीज की गवाही नहीं देता कि मैं वो चीज होने दूं। तो आई ट्राई टू इन अ वे inform them and try to warn them as much as possible without Right. kind of crossing a line also, Right. because वो भी बहुत important है। And I'll just say all these companies work in a similar fashion, is a similar same problem, Yes. same issues everywhere. Yes. बिकॉज मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स, हम इन जगहों से अब निकल चुके हैं Right. बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, Hmm. और कोई वजह नहीं है। Hmm. बट हमें पता है कहाँ पे कितना कट रहा होता है, एंड Hmm. हमें पता है कि किस नंबर्स के लिए क्या चल रहा होता है। तो समटाइम्स इट गेट्स वेरी ब्लरी ऑल्सो। जब आप उस एनवायरनमेंट में इतने टाइम तक रह चुके होते हो ना, तो आपके लिए वो चीज नॉर्मल हो जाती है, और वो बहुत स्कैरी सिचुएशन है टू बी, क्योंकि तब ना आपके लिए मोरालिटी आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है, वो प्रॉब्लम है। एंड जब अगर आपको ऐसा लगने लगे किसी भी जगह पे, आई थिंक दैट इज द टाइम टू लीव, छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए, स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट न्यू। ट्राई टू ऑलवेज वर्क फॉर पीपल हु डोंट जस्ट लुक एट नंबर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मुश्किल है, आई एम नॉट गोना डिनाई, इट्स वेरी Yeah. वेरी डिफिकल्ट, एवरीबडी वांट्स प्रॉफिट, एवरीबडी वांट्स नंबर्स, बट एथिकल ऑब्लिगेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी का घर बना रहे हो जिस घर में वो 8-10 साल रहने वाले, they're gonna be living in that space, they're gonna be growing in that space, they're gonna have God knows countless amount of memories in that space. You need to factor that into that long amount of span that person is gonna spend in the space you designed at the end of the day. अगर आपने वो चीज ठीक से नहीं करी है, तो वो जितने भी साल रहेंगे उस घर में, वो जो इक्का दुक्का चीजें जो आपने छोड़ दी होगी ना, जो इक्का दुक्का चीजें वो तकलीफ दे रही है उन्हें, वो हर रोज उन्हें तकलीफ देंगी, और हर रोज देंगे, वो हर रोज मन में ना एक वो आ जाएगा उनको कि दिन में एक बार उनके अंदर से वो चीज निकलेगी उस इंसान के लिए जिसने वो हमारे डिजाइन हमारे आज तक निकलती है, मैं और किया। आशु आज तक निकलती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो जब तक आप हम दोबारा काम नहीं करवाएंगे तब तक निकलती तब तक, रहेगी। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ना आप सिर्फ डोंट लुक एट इट एट द एज अ फ्रॉम अ डिजाइनर पर्सपेक्टिव, आई से कि वो सिर्फ ना 3 या 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक 10 साल रहने वाला स्पेस है। आपको उस हिसाब से ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो 10 साल तक वो जो फंक्शनैलिटी है उस स्पेस की वो बरकरार रहे, चाहे उसमें शायद कहीं कहीं पे आपको एस्थेटिकली आपको लो डाउन करना पड़ेगा फंक्शनैलिटी को ऊपर रखने के लिए, विच आई से प्लीज डू दैट। अगर कोई चीज फंक्शन और एस्थेटिक में अगर कोई चीज पहले आनी चाहिए तो हमेशा फंक्शन पहले आना। एस्थेटिक आप हमेशा बदल सकते हो, फंक्शन आप नहीं बदल सकते। फंक्शन अगर गलत है, अगर आपके कमरे में अलमारी का दरवाजा रोज साइड टेबल में अड़ता है, तो वो रोज दुखेगा आपको।
जितनी बार भी आप अलमारी का दरवाजा खोलोगे वो रोज दुखेगा, True. और वो रोज आपको चुभेगा कि क्यों क्यों मैंने इस बंदे को इससे काम कराया हर रोज। वो छोटी छोटी चीजें, अगर किचन का ड्रॉअर वो अड़ के खुलता है ना हर रोज, वो अड़ के बंद होता है हर रोज, वो अलाइन नहीं हो रहा है, या चीजें हिंज ठीक नहीं चल रहा है, चैनल ठीक नहीं चल रहा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर वो छोटी छोटी चीजें ना रोज जब वही सेम काम आपको दिन में 20 बार ही करना है तब वो चीज मैटर करना शुरू कर जाती तुमने सारे दुख याद दिला दिए शिवांगी आज। है। यार सॉरी, मतलब मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था इस चीज को इतना सैपी सारे बनाने का। पेन पॉइंट्स हैं हम लोगों के। बट मेरे को लगता है कि एज अ डिजाइनर, जो कोई भी नया बडिंग डिजाइनर है जो ऐसे नो दे वांट टू डू गुड वर्क, यू दीज आर द थिंग्स दैट यू रियली नीड टू टेक इनटू अकाउंट, बिकॉज इट्स द प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ। आप किसी का भी स्पेस डिजाइन कर रहे हो, आपने करके निकल जाना है, रहना उन्होंने है। अगर उनके रहने के हिसाब से वो चीज नहीं बनी हुई है ना, तो आपके आपकी वो पूरी 6-8 महीने की मेहनत सब बर्बाद है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। वाहवाही तो नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन उसका फायदा भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो इंसान भले ही आपको रेफर किसी को ना करे, लेकिन बुराई इतनी करेगा ना आपकी कि जो आसपास वाले, अगर कोई स्टम्बल अपॉन हो भी जाए आप पर, वो भी नहीं काम करा पाएगा। And you need to understand, world is it's very small world. You're bound to run into the same set of people, and you're bound to run into the same set of not just working professional but clients and connections and everything. So true. और कोई किसी ना कहीं से कनेक्टेड है, और अगर आपकी रेपुटेशन ही नहीं सही बैठ रही, जो एक एक पुराना फ्रेज था ना कि योर रेपुटेशन शुड प्रीसीड यू, इट्स वेरी वेरी ट्रू। आपका अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है किसी XYZ पर्सन के सामने, इट शुड बी विद द फैक्ट दैट कि नहीं, दिस पर्सन वाज वेरी प्रोफेशनल, दे टुक इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स, दे वर वेरी हेल्पफुल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देन कुछ अगर छोटी मोटी बात रह भी गई कि अच्छा नहीं नहीं, थोड़ी सी डायरेक्ट तो है या थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो है इन चीजों को लेकर, वो बाद में आनी चाहिए। बट अगर आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ठीक से पूरी नहीं कर रहे, तो आपकी रेपुटेशन बनी ही नहीं है, फिर कैसे आप काम करोगे इस इंडस्ट्री? आप शैडो में नहीं हो ना, हम क्लाइंट फेसिंग जॉब में हैं। आपकी आप चाहे आप एक्सट्रोवर्टेड हो या इंट्रोवर्टेड हो, आपकी रेपुटेशन जो बिल्ड हो रही है क्लाइंट के सामने, वो ही एक लौता प्रोफाइल है, वो ही एक लौता पोर्टफोलियो है आपका। अल्टीमेटली आप चाहे कितनी भी सुंदर पिक्चर्स PDF में डाल के ले जाओ, कितना भी सुंदर पिच आप कर दो, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपका काम आपके बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहा है, उस सबका कोई फायदा नहीं है। वो ऑन पेपर वाली चीजें विल नेवर एवर मैच अप टू द थिंग्स दैट यू हैव डन एंड दैट द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव बिल्ट। तो वहां पे पीपल फॉरगेट अबाउट, दे थिंक कि बड़े सुंदर सुंदर रेंडर बना के, सुंदर सुंदर शीट्स बना के वो लेके जाके क्लाइंट को वो कर लेंगे, और फिर वही होगा जो आप लोग बता रहे थे, जैसे उन्होंने आपको ठग लिया अ, काम दिखा के, और फिर बाद में ना काम ठीक से हुआ, ना पैसे उतने थे, ना आप अभी तक परेशान ही हैं, तो वही वाली बात होनी है फिर। तो ऐसे डिजाइनर अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके थोड़ा टाइम ज्यादा लें, अपना खुद का काम शुरू करने से पहले सीखें इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लर्न व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि लर्निंग व्हाट टू डू वो तो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, लर्निंग व्हाट नॉट टू डू इन प्रोफेशन वो नहीं सिखाया जाता, वो आपको करते करते ही आएगा। मैंने इतने साल में इन सारी कंपनीज में काम करके बस यही सीखा है कि बिजनेस में क्या नहीं करनी, क्या क्या चीजें नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, और वो इज आई से अ मच बिगर लर्निंग देन just how to make a quotation, how to make some pretty much bigger than that। तो बस प्लीज कृपया करके ड्राफ्ट्समैन को हायर ना करें, मेरी दरखास्त है सबसे, प्लीज प्लीज लोकल वेंडर के आगे किसी एजुकेटेड इंसान से बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक बार सेकंड ओपिनियन, जैसे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन आप लेते हैं, प्लीज एक सेकंड ओपिनियन ले लें और पता कर ले कि वो इंसान आपको सही में सही चीज बता भी रहा है या नहीं बता रहा है, तब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। एग्जैक्टली। तो आई मीन हमारी कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी डीपर चल रही है, तो बट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, आई नो वी एवरीवनस टाइम वी हैव टू रैप दिस अप, बट शिवांगी जाने से पहले एक चीज मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है अभी तक, और स्पेशली आज आपसे इतना सब सुन करके समझ करके मैं बस ये शेयर करना चाहता हूँ सबसे कि अगर आपका सपना है एक बढ़िया अच्छा खूबसूरत घर बनाने का, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने का जिसमें वो फिनिश हो,
राइट, इफ यू वांट दैट फिनेस, वो क्वालिटी अगर आपको चाहिए, Right. सो मेरा रिकमेंडेशन सभी के लिए बस इतना है कि पहली चीज, आप ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटीरियर डिजाइनर्स के पास मत जाइए जिनके पास ना ही कोई डिग्री है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई रेलेवेंट पोर्टफोलियो है। उनके पास ना जाइए। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आई वांट टू एनकरेज एवरीबॉडी कि फर्स्ट थिंग दैट पीपल हैव टू डू कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, जिनके पास में बेसिकली कोई डिग्री नहीं है, कोई रेलेवेंट एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, और उनके पास कोई ओरिजिनल ऑथेंटिक पोर्टफोलियो भी नहीं है, Yeah. तो आई वुड अर्ज एवरीबॉडी कि उन लोगों के पास आप ना जाएं। ठीक है, अब आपको जाना किन के पास है, आई वुड टेल यू, ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, विच आर लाइक कपल ऑफ बिग प्लेयर्स, जिनके हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं यूट्यूब पे, उनके सेवरल पोर्टफोलियो वीडियोस देखते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्स्ड वीडियोस हैं इन लोगों के। तो ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके पास अगर आप जाते हैं तो ये समझ के जाइए कि आप जो प्राइस होगा, डेफिनेटली आप उससे 2 या 3 गुना दे रहे होंगे, राइट? I'll correct you on this. Not 3 times. You'll या probably be paying 20 or 30% probably more of या the project सो than. सो व्हाट माय रिकमेंडेशन टुडे टू एवरीवन इज कि अगर आप वो अमाउंट नहीं देना चाह रहे, इफ यू वांट टू सेव दैट, इफ यू रियली वांट टू सेव दैट 30-40%, वो जो एडिशनल है, मेरी समझ ये कहती है अभी तक के एक्सपीरियंस में कि आप रादर उन लोगों के पास रीच आउट कीजिए जो इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट्स, राइट? एंड फॉर एग्जांपल शुभांगी, समबडी लाइक यू, राइट, जिन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इन बिग जायंट्स के साथ काम किया, already you are very well versed with the processes, with what goes into the whole process. You are well versed with that, and then there are a lot of people like you are out there to help and guide the clients कि कैसे उस चीज को किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, जो एक प्रॉपर फिटनेस प्रोडक्ट जो चाहिए होता है लोगों को, वो कैसे लोग उसको हासिल कर सकते हैं। तो माय रिकमेंडेशन, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज दैट प्लीज गो आउट and look out for independent architect rather than getting into ये जो so called review based or celebrity endorsement based बड़े बड़े organizations हैं। We are not quoting any names right now, but there are a lot of organizations as such जो एक hefty amount charge करते हैं, and again because they are investing so much into the marketing of their brand, so that is why you end up paying that, जो कवरेज है वो आप ही पे कर रहे होते हो। बट होता क्या है कि बिहाइंड द सीन्स काम कौन कर रहा है? बिहाइंड द सीन काम यही इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं, जो शायद आज इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट हैं लेकिन वो पहले Correct. employee थे, Employed. right? They were Yeah. their employees. So these people, these are those aspiring architects जो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, और जब वो वहां होते हैं तो you end up paying that coverage charge। और अगर आप बाहर किसी को रीच आउट करते हैं, so this is where you will be able to save that 30-40% का वो जो कवरेज है। This is how you can save it। But again, by the end of this, I want to say कि never ever go ahead and इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट, एंड आप अपना बुद्धि जो लगाएंगे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्किटेक्ट्स के साथ में, यू विल नेवर फाइंड दैट टू बी फ्रूटफुल। वो इवेंचुअली, एंड शुभांगी वेरी वेल सेड, कि हर रोज दराज खींचते टाइम आप उसको गाली देंगे, हर रोज दरवाजा खिड़की खोलते टाइम आप उसे गाली देंगे, वो गालियां कभी बंद नहीं होंगी, राइट? Yeah. तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो रेगुलर डे टू डे फ्रस्ट्रेशन से अगर बचना है, सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। गो फॉर एन educated and independent architect and try to find your way with them। Yeah. Right, be upfront, tell them that this is my budget. For example, I want to create this, I have a 10 lakh, 15 lakh, whatever my budget is. Be upfront, absolutely upfront with them, so that people like Shubhangi can actually go ahead and plan things accordingly for you। It's very, So this is the way to it's be। just value engineering at the end of the day, and Yeah, उसमें बहुत जरूरी है आप जितना ओपन रहेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में, जितना ओपन रहेंगे अपनी एक्सपेक्टेशन में एंड एवरीथिंग में, उतना ही आसान होगा उन चीजों को एग्जीक्यूट करवाना, उतना ही आसान होगा आपके विजन को टू लाइफ लाना उस true। सिनेरियो। एंड जब आप ऐसी बिग ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपको 250 एम्प्लॉयज के पैसे नहीं भरने हैं, तो आपको किसी एक बंदे की डिजाइन फीस देने में पैसा दिल दुखेगा नहीं आप, क्योंकि That's वहां true। पे you're paying probably one tenth of the price for that designer than what you're probably paying there, क्योंकि वो चीज प्राइस 10 times हाइक करके उसमें 20% डिस्काउंट लगा के आपको कोटेशन पकड़ा दी जाती है कि जी ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि आपको नहीं पता होता ना उसमें कितना कितना मार्जिन है, वो खैर बता तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी
यही होता है। तो उसमें किसी एक बंदे को हायर करके, एक छोटी टीम को हायर करके, जो 3 4 5 जने काम कर रहे हैं, जिनकी फैक्ट्री से टाई अप है, जो लोग डिजाइन आपके लिए करके दे सकते हैं, हैव दैट, गिव दोज न्यू बडिंग डिजाइनर्स अ चांस, क्योंकि वो लोग भी आर एज एंथुजियास्टिक, प्रॉब्ली मोर than people who have been working for 20 years, because उनका पहला पहला दूसरा दूसरा project है, they do not want to fuck up anywhere, so they will probably put more heart and soul into it than somebody who's probably doing copy paste for the 40th time, and you'll probably get much better result at a cheaper cost, if I may add, considering than going for the big एजेंसीज और समथिंग लाइक दैट। ट्राई करके देख लीजिए, बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी ही है। हम इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम छोटे छोटे डिजाइनर्स, तो हम लोग तो बस बोल ही सकते हैं। बाकी इट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट, बट दैट इज द गोल इवेंचुअली, दैट एवरीबडी शुड गेट द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, राइट काइंड ऑफ सर्विसेज, वट एवर दे आर पेइंग फॉर। ये रोज रोज की गाली ना देनी पड़े, वही गोल है हम सबका ही, मेरे ख्याल से। So hopefully that happens, and hopefully people are just, maybe a little inspired, and maybe a little ethically, just thoda sa they will look into things again. If somebody's probably at a verge of it, okay, please don't do that. It never ends well. It's not gonna give you any good reputation. It's a very small industry. You're bound to run into the same set of 200 people. So for one of this, please do not ruin that. A 30-year-old career, don't ruin that on a spin-off like that. Mat karo. It's not valuable at all. True. So, Shivangi, would you also like by the end of this want to share that how people who are, let's say, aspire to build their, Yeah. home or their cozy space? So how can they reach out to you? I have my Instagram handle. I'll provide that. They can mail me. They can DM me there also. I always respond to work mails and work DMs. And post that, we can set up a meeting, a Zoom meeting like this, if they're not comfortable or if they're not in town. Or we can set up a in-person meeting also over a coffee somewhere. Just discuss what they want to do, things, how they want to look up the space and stuff like that. And I'll be very upfront and very honest to say कि इतना काम इतने पैसों में होगा और इतना काम इतने पैसों में नहीं होगा. They can take a call for themselves. They can do part projects also. It's completely up to them. And if they just want design services, if they want to take up the whole installation by themselves, that is also possible. Instead of designing bhi, I can help them do that. That is not a problem. It really depends upon what services you require out of me, and rest the discussion can happen when we set up a meet for that. That is not a problem. So all kind of services, whether it's just layouting, whether it's colors, whether it's market make, whether it's the 20 other things that goes on in a project. जिन्होंने भी घर बनवाया है वो जानते हैं कितनी मेहनत मुशक्कत लगती है चीजों को सिलेक्ट करा के सब कुछ करने में। तो जिस भी at any stage that they want to take up a service, they can, and whatever they want to discuss, they can do that. That is not an issue, and we can see कि in terms of monetary value how that will work. उसमें कोई issue नहीं है, but that will completely depend from project to project and service, to be honest. Awesome. Yeah. Thank you so much for that, Shivangi. It's really very informative and insightful. And I'm sure this is absolutely helpful for a lot of people. I hope so. I really hope so. Okay, hope. I would request Ashutosh to help us with an outro. तो दोस्तों, ये था हमारा कॉन्वर्जेशन विद सुपर टैलेंटेड शुभांगी त्रिपाठी। शुभांगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वैल्यूएबल टाइम निकाला और अपनी एक्साइटिंग जर्नी और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की, एंड हमारी ऑडियंस के साथ भी। हमारी ऑडियंस के लिए ये एपिसोड बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो शायद एक नया मकान ले रहे हैं और दे माइट नीड नॉट अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटीरियर डिज़ाइनर। और हाँ, रैड शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं शुभांगी के साथ, आप वो भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पर्सनली भी शुभांगी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम इंस्टा आईडी वगैरह हम सब शेयर कर देंगे, राइट। सो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट और नई स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, स्टे क्यूरियस और देखते रहिए द रैड शो। टेक केयर एंड बाय बाय। Okay, bye guys. Thank you. Thank you, Shivangi.